So hi everyone, I am Parampreet Singh and जैसे कि like you all know, I've been taking revision sessions for the exams and OPPs for Python and like the complete MLP course sessions this term. And so like after the OPP2 sessions for Python, uh, we are like having these two revision sessions for end term. Two revision sessions mainly. First session is today. Uh, in today's session, we will cover all the topics. Okay, from week 1 to week 10, which is the syllabus of end term for programming in Python course, and from week 1 to week 10, week 1 से week 8 का we have already covered like in OPP2 and उससे पहले वाले का भी पहले वाले revision sessions में we have done. तो उस पर थोड़ा थोड़ा सा recap देख लेंगे जिसमें you guys have doubt. Then we will move on to the week 9 and week 10 topics, and this is about today's session. Then in the next session, which is on 31st, and on 31st 12 p.m. meet link will be same जो आज का meet link है, and that will be on at 12 p.m. Okay, so last time काफ़ी लोगों को confusion हो गई थी कि 8 p.m. था दूसरा, but नहीं 12 p.m. था. Similarly ये भी 12 p.m. होगा Saturday को. So तब we will do PYQs. We will solve 2 to 3 PYQs at least. Okay, complete like each and every question. And उसमें जो जो भी doubts आएंगे we will cover them at that time. आज we will cover the concepts. Concepts इसलिए like ज़रूरी हैं because after the anthem, when you like go to diploma level, then you will need like all these concepts. Okay, not exactly from week 1. I will like ask you which concept you have the doubt, and we will cover that specific one. Okay, from week 1 to week 8, but these three concepts we will cover up: recursion, object oriented programming, and exception handling. All right, and this session is being recorded, and I will upload the recording of this session in my YouTube channel, which is this Parampreet Singh. Just search Parampreet Singh or Param3021. You will get my channels, and you guys can subscribe to it, and I will upload the session or a recording of this session after this session. Okay, and all these session series are done in the collaboration with GIR House. So thanks to GIR House for the collaboration. Um, Also, just one more thing that if you guys want to support me further, you can join my channel to like support me financially. If you want, it's up to you. That's it. And regarding regarding the concepts, like जो आज हम concepts cover करेंगे, from week 1 to week 8 we will cover like from very like shallow. We will cover a bit of the concepts. Okay, अगर आपको deeply एक एक concept cover करना है, so you guys can refer to this playlist, and in this playlist I have covered each and every topic and some other sessions as well, so you guys can refer to this playlist as well. And that is it. So let's start. Once you go through all the week's content, please. Okay, no problem. We will go through each and every topic. So let's start. First is the yes, OPPE's ka. I have a great example as well for today. So don't worry, OOPS में सब कुछ clear हो जाएगा. Just like before starting, just tell me, in OOP, do you guys have inheritance? Like those who have covered object-oriented programming. Okay, inheritance में single level inheritance है. इस slide में we will cover the concepts from week 1 to week 10. Okay, so that we will be ready for the end term. Then we will do some PYQs in next session. Okay. Inheritance is of like multiple types: single, multi-level, multiple, and some more types are there, but I think mainly three types are there in the like while I was having Python. So these three types were there at that time. Abhi this time I don't know, but these are like some basic things.
इतने लेवल के इनहेरिटेंस you should know, so that you guys can like further do the things. Okay, write the code. I think it's the same time this is the okay. Then it's fine. So yes, let's start with the basic data types and variables. So you all know data types. Int का मुझे well refer करने की ज़रूरत नहीं. It is an integer. Then for the float, it is a float. Okay, tell me the value of y. Okay, type of y. Will it be a float or integer? Okay, yes, it will be Float. a float. Float. And what about this 3 point? Okay, Float. yes, it will be float. And ये तो बहुत basic हो गए, integer and all. Operators we are not doing, operators so easy. And then strings का तो mainly सबको अब like those who are what attending my revision session सबको clear हो ही गया होगा, indexing, slicing and all. Okay, मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ. If I want to extract, let's say, okay, just param, how can I extract the param word using positive slicing? 0 to 6. Okay, yes, 0 to 6. And is this valid? 0 6 1. Yes. Yes. Okay, यहाँ पे 6 आएगा, 5 आएगा. 6. Are you sure? Okay, let's check. 0 1 2 3 4. I don't think 6 आएगा. Let's run it. 5. 6 पे आएगा, then it will cover p as well, because index starts from 0 and इसका index है 4. So 6 we should not write, we should write 5 क्योंकि n plus 1 होता है. Okay, this is very basic. Reverse of a string, you know, अगर मुझे okay, reverse of a string तो you all guys know. If I want to print just Parampreet in reverse from S, then slicing क्या होगी मेरी? In reverse only Parampreet. Okay, एक एक करके I have got like 2 responses. Okay, various responses. So okay, मैं सारों को रन करके देख लेता हूँ. ठीक है, 0 doesn't matter, 0 हम लिखे या नहीं लिखे, -1. Then print as colon colon -7. Okay, are you sure शुभ कि colon 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 -7 होगा? Okay, -7 colon colon. All right. Mm. Let me run all these, then let's see. Okay, first, so this is the complete reverse. Okay, second, this is reverse, but यहाँ पे you guys can see तो sing आ रहा है reverse में. अपडेशन में -1 होगा एक. In the sorry, where? Okay, then last वाला -7 यहाँ पे तो we are getting like positive in the normal manner, reverse में नहीं है, and just लास्ट t वाले with में sing. वो -1 होगा. Okay, -1. If I write -1, yes. Okay, so -7 to okay. इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है? This one. Well, string slicing तो सबने कर ली होगी. स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन -7 है हम्म और वहाँ से हम लोग को वो एंडिंग इंडेक्स पोजीशन तक जाना है, लेंथ जो है, हम्म और अपडेशन है वो -1 होगा. तो हम्म स्ट्रिंग जो है वो मतलब रिवर्स मैनर में देगा राइट एग्जिट. राइट राइट. सो यस. ओके, एक तो ये वे हो गया. ओके, वेल वेज तो बहुत सारे हैं. लेट्स जस्ट कवर द बेसिक्स ओनली. एंड यस, ये तो बहुत हो गया. List tuple and index. Okay, if I write as 1. Okay, what is this? What is the type of s? Int. All right.
Now what is the type? Float. Float. And now Tuple. tuple. Yes, a comma, just a comma we need for tuple. All right. And okay, what is the type of this X? Int. Int. Are you sure tuple नहीं होगा? No. Okay, and if I add decimal, okay मैंने खुद ही कह दिया well, Float. float, right. सिंगल वैल्यू टपल के लिए ये होता है, बहुत बेसिक सा है, बाकी तो ओके. व्हाट इज दिस? एस का टाइप क्या होगा? एनीवन? एरर आएगा या कुछ? इफ आई रन दिस empty, but None. empty. Okay, those who are saying error, just raise your hand. Okay, कोई भी नहीं. Then it's okay, set भी आ रहा है. Okay, so let me write options, that will be much better. A error, जिसको कोई भी नहीं कह रहा. B set. Okay, काफ़ी लोगों ने आई थिंक रन कर लिया होगा. D tuple, C tuple and D none. What will be the answer? C. Yes. Tuple, it is an empty tuple. Can we add anything in this after creating a tuple? Yes. Okay, how? Write element and put comma. No. Can we add anything this tuple? No, it is immutable. No? Yes, we cannot add. All right, ये तो बहुत बेसिक है, आप सबको पता ही होगा. Can we add anything in the list? Yes. Okay, there are two ways, right? S dot append any element, or S dot insert, and we have to pass the index and then any element. Okay, now you guys tell me कि order, like what will be the list? ये list क्या होगी? Either this is hello world or this will be world hello. A or B? B. Okay. World hello. वही. Yes. Now अब क्या होगी? वर्ल्ड हेलो ही होगा. Yes. Okay. -1. Yes. Okay, बहुत सारे आंसर से आ रहे हैं. कोई B? Anyone for B? B, I think B. ओके. सी -1 पे जब हम यहाँ पे अपेंड कर रहे हैं, तो हमारे पास ये लिस्ट बन के आ रही है हेलो, विच इज़ इन द इंडेक्स ऑफ बोथ 0 एंड -1. ठीक है, हम -1 में अपेंड कर रहे हैं, मतलब हम लास्ट उस पर अपेंड कर रहे हैं, तो -1 के पहले जो भी होगा, लाइक इस -1 पे जो भी होगा वो पीछे हो जाएगा, उसके आगे अपेंड होगा. सो ये ऐसे वुड बी द आंसर. ओके ओके. ओके, सॉरी, आई गॉट कंफ्यूज. ओके, -1 पे जो भी है दैट विल बी ओके शिफ्टेड टू द नेक्स्ट एलिमेंट. ऑल राइट, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था. नो वरीज. सो ये तो बहुत बेसिक है. दैट इज फाइन. डिक्ट सेट वैल्यू ऑल नो. ओके, इज दिस अ डिक्शनरी और अ सेट? डिक्शनरी. Dictionary. ओके. नाउ Set. सेट. एंड नाउ आई हैव रिमूव द कोमा. अब बताओ, विल इट बी सेट और डिक्शनरी? Set. सेट. अगेन सेट. ठीक है, क्योंकि दिस इज अ सिंगल एलिमेंट एंड ये एलिमेंट एक पेयर नहीं है, इट इज जस्ट अ नॉर्मल लिटरल एलिमेंट, तो यस इट विल बी अ सेट. वेल, आप लोगों ने ही काफ़ी कुछ कवर कर दिया खुद ही, दैट इज़ ग्रेट. अभी फंक्शंस. फंक्शंस तो वेल आप सबको बताओगे. एक छोटा सा ट्रिकी वाला कर लेते हैं. n इक्वल्स टू 30 चेक n and n equals to 50.
Now tell me what will be printed. What will be the value of n before and after? ओके मैं दो ऑप्शंस पूछ लेता हूँ, दो इनफैक्ट तीन ऑप्शंस पूछ लेता हूँ. Whether it will be like 30 and 50, or it will be 50 and 50, or it will be 30 30, or it will be 30 and none. Tell me which option is correct. ओके काफ़ी मिक्स अप आंसर्स आ रहे हैं. ऑल राइट, सो ओनली फ्यू ऑफ करेक्ट. 30 50 50, दैट इज समथिंग न्यू. एक और ऑप्शन ऐड कर लेते हैं. ठीक है. यस, सी इज द आंसर. कोई एक्सप्लेन करेगा वाई सी इज द आंसर? लाइक 30 एंड 30, कैन एनीबडी एक्सप्लेन? यस, ग्लोबल वेरिएबल नहीं है. राइट, ओके, नो रिटर्न इंडेक्स. ओके, नाउ टेल मी, अब क्या आंसर होगा? स्टिल सी. 30 50 30. ओके, स्टिल आंसर विल बी सी 30 30, क्योंकि मैं उसको फंक्शन कॉल को प्रिंट नहीं कर रहा. राइट, बहुत बेसिक सी चीज़ है. ओके, अभी इफ आई ऐड लेट्स से ग्लोबल एन, एंड यहाँ से मैं एन हटा देता हूँ. नाउ टेल मी व्हाट विल बी द आंसर. Yes, 30 50, because this will okay, sorry, here I have fast check. If I run this, I'll get 30 50 because I am accessing the global variable and it is changing the value of global variable. Right, बहुत basic सा था, just to clear the basic understanding. Okay, and okay, एक छोटा सा tricky question. What will be the type of this? Okay, is it valid? ओके, मुझे पहले ये बताओ, ये स्ट्रिंग है या कमेंट है? string. Yes, it's a multi-line string. Right, so this is valid. Okay, well, इतना ठीक है, that is it. इस पे बस बेसिक्स आई जस्ट वांट टू क्लियर, ब्रश अप करने थे. एक लैम्डा फंक्शन का भी कर लेते हैं. I'll write directly like this. What will be the answer? Should we get none, or should we get, let's say, 10 or 25 or anything? Okay, 10. yes, 10 will be the answer. कोई explain कर सकता है इसको? बहुत basic है. Anybody? Okay, so this is a lambda function, anonymous function है, where we are passing two arguments x and y, and उन x and y की रिटर्न, वो इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू है x into y. Okay, and this whole function I have wrapped it in a bracket. Okay, in brace parenthesis. So पूरे फंक्शन को I am now calling it. Okay, and calling it by passing 2,5, and then hence I am getting 10, क्योंकि 2 will be passed to x and then 5 will be passed to y. Okay, is this valid? ये थोड़ा न्यू है, लास्ट टाइम मैंने नहीं किया था. ओके, व्हाट विल बी द आंसर? अभी मुझे बताओ, व्हाट विल बी द आंसर? विल इट बी 10 और विल इट बी 20? 10. ओके, 10 विल बी द आंसर बिकॉज यहाँ पे होगा. ऑल राइट, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें. सो यस, मेनली तो आपको लैम्डा फंक्शंस का मुझे जस्ट वांट कि एक बेसिक आपको पता चल जाए कि हाउ इट इज़ वर्किंग. रेस्ट तो ट्रिक्स वगैरह बहुत होती हैं. ठीक है, हमने पहले काफ़ी कुछ किया, कवर किया था. फाइल हैंडलिंग,
y 10. Okay, so this is the code, right? अगर मैं यहाँ पे first argument is like, okay, if I even let me wrap this whole function into, let's say, fn. If I call this fn function, now you will see कि there is like two data types, and by default the value like two arguments. First is x. Yes, it will overwrite y equals to 5. Why? Because मैं एक पास कर रहा हूँ आर्ग्यूमेंट. टू आर्ग्यूमेंट्स आर देयर, x एंड y. y की डिफॉल्ट वैल्यू 10 है. अगर मैं कुछ पास नहीं करता फॉर द सेकेंड आर्ग्यूमेंट, देन इट विल कंसिडर 10. देन आंसर विल बी 20. Yes, if y not given, it will. Can you explain map and filter? Okay, map and filter I think मैं बहुत बार ही समझा चुका हूँ. मैप एक बेसिक सा कवर कर लेते हैं. square x into x. Okay, let's say we have a list called nums 1 2 3 4 5. What a normal approach would be, like if I want to create a squares list, what I will do is I will simply call the square function. Square equals, okay, sq equals square of 5, and squares dot append sq. Okay, it will print me the squares, right, of 1 to 5, that is 1 4 9 16 and 25, right? The same we can achieve here as well, using map. How? I will write squares 2, and in the squares 2 सबसे पहले I will write the map function. In map function first argument is I have to pass the function, जो भी मुझे जिस भी function को हर एक एलिमेंट पे कॉल कर रहा है, ठीक है. एंड देन आई हैव टू पास द वट एवर आइटरेबल, जिस भी मुझे लिस्ट या टपल के ऊपर और मुझे उसके एक एक एलिमेंट पे आई हैव टू कॉल द स्क्वायर फंक्शन. सो इफ आई पास इन नम्स हियर, देन क्या होगा, ये नम्स पे एक एक एलिमेंट पे जाएगा एंड उस एक एक एलिमेंट पे स्क्वायर फंक्शन को कॉल करेगा, जस्ट लाइक दिस. एंड वट एवर वैल्यू इट विल गेट, वो उसको अपेंड कर देगा इन द लाइक द मैप ऑब्जेक्ट. एंड हमारे पास ना एक ऑब्जेक्ट आएगा. वी वोंट गेट एनी काइंड ऑफ लिस्ट or let's say tuple or anything. हमारे पास एक object आएगा. That object further we can transform into like list or tuple or set. Okay, so this is how map works. And filter is basic. Okay, is map clear? Okay, all right. Abhi now filter. For the filter, let's say is even, and if the number is even, I can simply check by n mod 2 equal to 0. So it will return true अगर number even होगा, और अगर number odd होगा then it will return false. मेरे पास एक list है 1 2 3 4 5 and I want कि सारे evens ही आए मेरे पास, ठीक है. So what I will do is I will use the filter function, and in the filter function same as map I will pass the function. and filter में क्या है, जो भी function होगा ना, that should return either true or false. Okay, that is you can say the requirement mainly. अगर वो object पे return करेगा तो भी वो it will interpret into true and false. Then is even, then I have to pass the iterable. And if I run this, okay, before that let us do the normal. If I want evens list, what will be the normal approach for I in S? If I is even, like if is even I, then only I have to append I in evens, right? This is normal approach to filter a list kind of. मुझे अगर सारे evens चाहिए, ठीक है, मेरे पास 2 and 4 आ रहे हैं. दिस इज क्लियर है ना? इट इज़ वेरी बेसिक. अभी इफ आई डू दिस, यहाँ पे भी सेम हो रहा है, जस्ट एज मैप. इट इज iterating through each and every element of this list, and it is calling is even function on each element. जिस फंक्शन पे जिस एलिमेंट पे इट विल गिव अस ट्रू, ये जो फंक्शन कॉल ट्रू देगी, दैट
element will be added, that element will be considered, and it will create a filter object. Okay, just like this. Then further we can convert it into list or tuple or set, whatever we want. So that will also return true. Okay, oh sorry, 2 and 4, which is because ये सारे evens हैं. अगर मैं यहाँ पे okay, is this clear? The filter and even. Okay, अगर मैं यहाँ पे एक छोटे से ये करता हूँ not equal to. Now tell me what will be the output of both of these. 135. Yes, 135. It will return the odds because n mod 2 not equal to 0. Okay, so name ulta hai and working is opposite. So make sure you guys like, it's just a normal tip, like whenever you write a function, so जो function का name होता है, it should like represent whatever it is like doing the working. जो भी फंक्शन काम कर रहा है, मेक श्योर द नेम शुड बी सिमिलर, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन हो सकती है. जैसे अभी भी काफ़ी लोग कंफ्यूजन हुई होगी कि इज इवन है बट नॉट इक्वल टू 2 है, तो आंसर क्या होगा. ओके, सो दिस इज बेसिक. नाउ ओके, फाइल हैंडलिंग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा. वेल, फाइल हैंडलिंग तो आई होप सबको क्लियर होगा. रीड लाइन्स एंड CSV का भी. Okay, we have these recursion, object-oriented programming, exceptional handling. So, okay, recursion किस को clear है? Give a thumbs up if you have like if you have done recursion, or give like a thumbs down if you don't know what a recursion is. All right, great. So आप सबको मोस्ट ऑफ द लोगों को क्लियर होगा. रिकर्जन इज कॉलिंग द सेम फंक्शन इनसाइड दैट फंक्शन. ओके, सो लेट्स से मैंने एक फंक्शन बनाया प्रिंट हेलो. ओके, व्हाट इट विल डू इज इट इज सिंपली लेट्स से प्रिंटिंग हेलो, and in the return value, or in fact not even in the return value, it is just printing, it is just calling the same function. Okay, now if I call this function outside of this, can anybody tell me ki how many times hello will be printed? Well, जिसने recursion करा उस सबको पता होगा. Okay, infinite. How many of you? Okay, I'll write basic options, so I'll get the how much understanding you know. 0. The error. What will be the answer? Okay, everybody agrees. So see, basic से working है. If I run this, so it will give me recursion error, maximum depth reached. And if you see, hello is printed. मैं यहाँ पे scroll bar पूरा ऊपर नीचे कर रहा हूँ, hello ही है चारों तरफ. Okay, why always hello? It first like ये function call में सबसे पहली line execute होगी hello. Yes, no base cases there. First hello will be printed, then वापस से same function call हो रहा है. ठीक है, and it is like calling again and again and again. हमने कोई stopping criteria नहीं लगाया, हमने कोई base case नहीं set किया हुआ. Okay, let's say मैं यहाँ पे ना एक base case set कर देता हूँ, n equals to 10. If n is less than 0, then we will just simply return. Okay, and here in print hello, what I will do, I will pass n minus 1. Now tell me like how many times it will run. 10, E, 9 and 5. Okay, yes, 10 times it will be printed. If I run this, you guys can see, I hope. Okay, well not okay, मुझे एक और डालना चाहिए. Well, G11. Well, let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yes, 11.
अब कोई बता सकता है 11 क्यों, 10 क्यों नहीं? Equal to 0. यस, इक्वल टू 0 होता, ऑफ कोर्स दैट इज द केस, राइट। क्योंकि n इक्वल्स टू 0 था। अगर n जब सी n इक्वल्स टू 10 पे इट इज बीइंग प्रिंटेड, n इक्वल्स टू 9 पे इट इज बीइंग प्रिंटेड, 8 पे भी, 7 पे भी, 6 पे भी, 5 पे भी, 4 पे भी, 3 पे भी, 2 पे भी, 1 पे भी, एंड जब 0 आ रहा है ना, सो दिस कंडीशन इज स्टिल ट्रू, ठीक है। n इज इक्वल टू 0 नॉट लेस देन 0, जब n की वैल्यू 0 है तब ऑल्सो इट इज बीइंग प्रिंटेड, सो यू गाइस कैन सी 11 टाइम्स इट इज बीइंग प्रिंटेड, ओके। एंड सबने 10 कहा, इट्स फाइन, जस्ट मेक श्योर कि आप लोग इसका थोड़ा ध्यान रखो। आपको एनईटी टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अभी तो आई हैव गिवन यू द ऑप्शंस, सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस नहीं देता तब मोस्ट ऑफ द पीपल विल राइट 10 इन द एनईटी, ठीक है, जो ब्लैंक में वी हैव टू राइट। सो मेक श्योर कि आप एज केसेस को अच्छे से देखो। सो दिस इज लाइक सम काइंड ऑफ एन एज केस, अगर मैं इक्वल टू का साइन डाल दूँ देन जीरो वोंट बी कंसिडर्ड, एंड जैसे जीरो आएगा it will return, it will like just end the function, okay। ये बेसिक रिकर्जन है। रिकर्जन इज जस्ट कॉलिंग द सेम फंक्शन अगेन एंड अगेन, एंड इसके पीछे स्टैक यूज होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, जस्ट बेसिक बेसिक आई एम कवरिंग कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। दिस मच इज क्लियर, लाइक वाई 11 calls, why not 10 calls? This is clear to everybody? All right। अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इंटरेस्टिंग होता जाएगा सेशन। रिकर्जन के बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फॉर OOP आई हैव लाइक वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल आज, ओके। सो ओके, अभी रिकर्जन पे एक और देख लेते हैं। फैक्टोरियल का कोड तो सबको पता होगा, ओके। सम का देख लेते हैं, ओके। मैं एक फिबोनाची, ओके, yes, object oriented programming I will cover from very basic। so sum, okay, let's say मुझे sum of first natural numbers चाहिए, ठीक है, using whatever like using recursion, okay। मतलब अगर मैंने 5 डाला तो मुझे आंसर चाहिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 which is equal 6 and is 20 15, yeah, 15। so I want answer as 15 but in a recursive manner। so can anybody tell me like how can I get the answer? How can I create a recursive sum function? मैंने बस एक n पास किया, ओके। जस्ट नॉर्मल थिंग, व्हाट आई विल डू इज एक सिंपल रिटर्न होगा। रिटर्न वैल्यू क्या होगी फंक्शन की? रिटर्न वैल्यू विल बी द n, जो भी हमने n पास किया है, ठीक है, प्लस, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है, प्लस सम ऑफ n, इट विल अगेन कॉल द सेम फंक्शन बट n-1 टाइम्स, ओके। सो इट मीन्स लाइक एक बार ही कॉल होगी 5 प्लस सम ऑफ n 4, ओके। देन सम ऑफ n 4 में होगा 4 प्लस सम ऑफ n विच इज 3, ऐसे से करके जाएगा। एंड बेस केस हमारा क्या होगा? ओके, एक हमें बेस केस सेट करना पड़ेगा, नहीं तो माइनस वैल्यूज भी आ जाएंगे एंड एक टाइम के बाद माइनस में सम चला जाएगा, राइट। बेस केस कैन बी like if n is less than 1 we will simply return 0, right? Or base case is also can be if n equals to 1 then we will simply return 1, ठीक है। this can also be base case। base case बहुत सारे हो सकते हैं, depends upon कि how many edge cases we are handling। अगर n माइनस भी पास कर सकते हैं, लेट्स से मैंने स्टार्टिंग में ही -2 पास कर दिया, then will what will be the answer of this? ओके, नॉट नन, नन नहीं होगा। सी ये तो ये वाली कॉल तो इनवैलिड हो जाएगी। इट विल बी लाइक इनफाइनाइट, इट विल रन इनफाइनाइट टाइम्स, -2 प्लस -3 -4 -5 माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, राइट। तो इसके लिए एक छोटा सा, इट्स अ काइंड ऑफ एन एज केस, इसको हैंडल करने के लिए हम ऐसे कर सकते Less than. हैं, यस।
ओके अगर लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो 1 ही आएगा आंसर. ओके लेट्स कंसिडर 1 एज द फर्स्ट नेचुरल नंबर. ओके सो n मैं नॉर्मली रख देता हूँ. प्रिंट सम n 5. so it is like printing 15. okay अब मुझे आप लोग एक छोटा सा बताओ. if I want to convert this to a multiple like prod, if I write product, I want the product of first 5 these numbers, like 1 into 2 into 3 into 4 into 5, which will be 120 if I'm not wrong. Replace with plus. Yes, I'll replace the that plus with the uh, multiply and then minus 1. okay because I'm just doing the product. Here, like, do we need to handle this edge case? No. No, this is like very much fine edge case. okay अभी if I like go back to the sum, जो पहले sum वाला function था. okay this is good. अगर मैं ऐसे भी करता हूँ, if let's say n is less than 1, I'll return 0. okay ये मुझे सही आंसर देगा? first of all tell me, like if I pass in 5, will I get 15? yes, I will get 15 because जैसे ही n की वैल्यू 0 हो जाएगी, it will simply like here you can see we are getting 15. जैसे ही n की वैल्यू 0 हो जाएगी, it will return 0. okay now if I like convert this into multiply, I'll write prod here, okay, instead of some product. Now tell me, what will be the answer? Will answer be 120, 15, 0, or infinite time it will call 0? okay कोई explain कर सकता है why 0? Because when we will have 1 and we will do -1, then it will go to 0 and it will return 0. yes, बेस केस जो है 0 रिटर्न कर रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट में. सो दैट मीन्स जैसे ओके लेट्स से मान लो n इक्वल्स टू 3 पे आई हैव कॉल्ड प्रोडक्ट. ओके which basically refers to 3 into product of 2. okay which basically means 3 into product of 3 into 2 into product of 1. ठीक है, which again if I go 3 into 2 into 1 into product of 0. Now this 0 is less than 1. now this condition is true, so it will give me 3 into 2 into 1 into 0, and eventually any number multiplied by 0 will return 0. okay so this is how recursion is working here. I hope ये सबको clear होगा. so that's why edge case, like the base case matter, the return value of the base case matters. okay आई होप सबको रिकर्जन वैसे तो क्लियर होगा एंड इससे भी क्लियर हो गया होगा. अगर किसी को कोई डाउट है इन द रिकर्जन, एनीवन? ऑल राइट, सो if I even run it, we will get okay yeah 120 here. if I set 0, we will get 0 here. okay now if let's remove this. abhi this is like the very basics of recursion, how it is working underneath everything. जो है like you can watch my this session number 15. okay here I have covered recursion and the binary searching algorithm as well. okay so if you want to deep dive into recursion, you guys can watch this session. अभी तो like बहुत बेसिक हो गया. okay let me like set the screen something like this. all right. okay yes, that is fine. now recursion सबको clear है? just like give a thumbs up if it is clear. if it is not clear, you can give a thumbs down. अगर कुछ डाउट होगा we will be फाइल हैंडलिंग करेंगे. हम फाइल हैंडलिंग नहीं, लाइक फाइल हैंडलिंग लाइक थोड़ा सा अपने में ही
बड़ा टॉपिक है, वेल नॉट दैट मच बड़ा, बट हमने ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से कवर किया था लास्ट टाइम। नाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड में करते हैं बिकॉज वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग पहले कर लेते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन एक्सेप्शनल हैंडलिंग? गिव अ थम्स अप इफ यू हैव डन, इफ नॉट गिव अ थम्स डाउन। ओके, 50%, ऑल राइट। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग जिन जिन लोगों ने करा है, कैन एनीबॉडी टेल मी लाइक व्हाट इज द यूज ऑफ दिस एक्सेप्शन हैंडलिंग? किस चीज के लिए लाइक वी यूज दिस In एक्सेप्शन? output, we will not get error. ओके, टू हैंडल द एरर्स मेनली, राइट? सी, वाई टू हैंडल एरर्स? जब भी आप लोगों ने लाइक वेबसाइट कोई, लेट से अगर आपने कोई वेबसाइट पे कुछ डेटा वगैरह कोई फॉर्म फिल किया, ठीक है, मान लो आपको एज फिल करनी थी, ठीक है, इन द वेबसाइट आपने एज नेगेटिव में फिल कर दी, ओके, बट जो डेटाबेस है, डेटाबेस पे एक कंस्ट्रेंट सेट है कि एज जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, सो इट शुड नॉट बी नेगेटिव। तो जो है जब डेटाबेस पे आपने जैसे कोई एक वेबसाइट पे फॉर्म फिल किया, तो वो डेटाबेस में एंट्री ऐड करेगा आपकी, एंड वहाँ पे जाके डेटाबेस एक एरर दे देगा कि ये एज का कंस्ट्रेंट फुलफिल नहीं हो रहा, ओके। तो पता है क्या, नॉर्मली व्हाट विल हैपन इज, इफ़ यू हैव डन लाइक वेब डेवलपमेंट एंड ऑल, तो आपको पता होगा कि इंटरनल सर्वर एरर आ जाएगा, ओके, 500 समथिंग स्टेटस कोड के साथ आपके वेब पेज पे बस लिखा आ जाएगा इंटरनल सर्वर एरर, आप कुछ कर नहीं पाओगे उसके आगे, ओके। बट विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्शनल हैंडलिंग, अगर आप एज -1 करते हो ना, सो इट विल लाइक, ओके, वैलिडेशन चेक होता है, वैलिडेशन चेक को आई एम नॉट कंसिडरिंग। सो व्हाट इट विल डू इज, जब वो एज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 का कंस्ट्रेंट चेक होगा, अगर वो कंस्ट्रेंट फॉल्स हो जाएगा ना, लाइक अगर दिस वैल्यू विल, इफ दिस वैल्यू विल बी फॉल्स, देन कुछ एरर लाइक एज अ वेब पेज पे एरर नहीं आएगा कि इंटरनल सर्वर एरर और समथिंग लाइक दैट। it will like generally what people do is they basically shows a pop up कि invalid value something like that, okay, invalid value of age red color में highlight होके आ जाएगा। so like this is how you guys like we can handle exceptions, we can handle errors। so like जिससे error ना आए, error की जगह हमें कोई एक informative message मिल जाए जिससे लाइक हमारा प्रोग्राम क्रैश ना हो, ठीक है, क्योंकि एरर आते ही हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। एम आई राइट? ओके, बहुत बेसिक सा एक करते हैं। लेट्स से आई एम इनपुटिंग एन इंटीजर, एंटर अ नंबर, ओके, आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट इनटू इंटीजर। आई डोंट नो वेदर दैट नंबर इज लाइक जो इनपुट होगा वो क्या होगा। आफ्टर दैट आई एम जस्ट लाइक प्रिंटिंग नंबर इज इन, ओके। मैं इसको रन करता हूँ, आई विल रन इट 2-3 टाइम्स, वाई आई विल शो यू। तो एंटर अ नंबर, सबसे पहले लेट्स जस्ट विद 5, इट वर्क्स, नंबर इज 5। लेट्स जस्ट विद 0, इट वर्क्स, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट विद हेलो। अब आपको क्या लगता है एरर? वेल ठीक है, एरर तो आएगा। विल दिस लाइन बी प्रिंटेड लाइक नंबर इज हेलो करके प्रिंट होगा? बट एवरीबडी एल्स लाइक बाकी सबको क्या लगता है? विल दिस लाइन बी प्रिंटेड, लाइन नंबर 30 एग्जीक्यूट होगी? No, of course not. Why? If I simply run this, just read the error once. Error is value error, invalid literal for int with base 10, मतलब कोई इस base 10 पे कोई like this hello it is not able to interpret as an integer, and ये error हमारा आ रहा है line number 28 पे, and line number 28 हेयर इफ यू सी यहाँ पे आ रहा है। तो लाइन नंबर 28 के बाद 29, 30 उसके आगे जितना भी बड़ा कोड होगा ना, वो सारा लाइक हमारा कोड प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, ठीक है। इट वोंट बी एबल टू रन एनीथिंग। मान लो हम यहाँ पे नंबर भी नहीं, हम बस नॉर्मल प्रिंट कर रहे थे कि प्रोग्राम फिनिश्ड, ओके, समथिंग लाइक दैट, तो ये भी प्रिंट नहीं होगा। इफ आई जस्ट राइट एनी इनवैलिड वैल्यू, तो ये प्रिंट नहीं होगा, बस ये डायरेक्ट एरर आ जाएगा। नाउ हाउ टू हैंडल दिस एरर? we use the concept of exceptional handling, बहुत basic है। what we will do is, okay, first we will input a number,
नंबर इनपुट करने के बाद वी विल क्रिएट अ ट्राई ब्लॉक। ओके, ट्राई के अंदर हम वो सारा कोड डालते हैं विच कैन रिजल्ट इन एन एरर। सो अगर अभी आप देखो लाइन नंबर 28 पे एरर आ रहा था, दिस कोड पे, सिर्फ इसी कोड पे। लाइन नंबर 27 पे कोई एरर नहीं आ रहा था, सो आई एम नॉट इंक्लूडिंग दैट लाइन। ठीक है, मैं इसको इंडेंट कर दूंगा ट्राई के अंदर। ठीक है, नाउ ट्राई के अंदर क्या होगा, ये एन को ट्राई करेगा इसमें कन्वर्ट करने का इंटीजर में। अगर तो हो जाता है दैट देन इट इज फाइन, देन यहाँ प्रोग्राम फिनिश रन हो जाएगा। अगर नहीं, अगर कोई एरर आता है, सो व्हाट आई विल, हाउ कैन आई हैंडल द एरर, एक्सेप्ट, I will use except block, except and then exception. See, all these errors now, all these errors are like uh, inherited by exception class of Python. Exception के अंदर सारी exceptions आते हैं. These errors are called exceptions in Python. Value error, index error, indentation error, any kind of error, सारे exception में आते हैं. ठीक है, so I will simply write except exception. अगर कोई exception generate होती है, what I will do is I'll write error while converting n to integer. Okay, I'll simply write this and now I will run. Okay, for 5 if I enter 5 तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? ओके, लाइन नंबर 33 एग्जीक्यूट होगी if I input 5? No. No. लाइन नंबर 35 एग्जीक्यूट होगी? Yes. लाइन नंबर 35 will be executed like how? सी नॉर्मल जैसे प्रोग्राम पाइथन में इंटरप्रेट होता है लाइन बाय लाइन, सबसे पहले लाइन नंबर 27 विल बी एग्जीक्यूटेड, लाइन नंबर 28 इज एम्प्टी, देन 29 ट्राई पे इट विल ट्राई टू कन्वर्ट। अगर ये सक्सेसफुली कन्वर्ट हो जाता है, इट विल इग्नोर दिस एक्सेप्ट ब्लॉक। ओके, इट विल सिंपली इग्नोर द एक्सेप्ट ब्लॉक एंड लाइन नंबर 30 के बाद इट विल डायरेक्टली गो टू लाइन नंबर 35। ठीक है, अगर ये सक्सेसफुली लाइन नंबर 30 एग्जीक्यूट हो जाती है, so if I run this, you will see program finished. Okay, that is it. Now if I run the code again and if I type simply p, okay, now line number 27 will run, 29 and then 30 पे while running this line it will result in an error, this value error. वो वैल्यू एरर दिस एक्सेप्ट ब्लॉक यहाँ पे जाके एक एरर रेज हो जाएगा। ठीक है, एरर विल बी रेज्ड, सो मेक श्योर यू लाइक just focus on what term I am using. Error will be raised. Okay, why raised I will show you कि errors हम खुद भी raise कर सकते हैं कोड में। ठीक है, then it will go to except block क्योंकि यहाँ पे error आ गया and वो error exception के अंदर आते हैं सारे error, तो I will simply write except exception। अगर कोई भी error आता है then this will be printed. Okay, then line number 33 print हो जाएगी, उसके बाद line number 35 will be printed. Okay, if I run this you will see error while converting n to integer, program finished. Okay, ये क्यों आया? अगर मैं इसको ऐसे नहीं करता, इसको भी नहीं करता और इसको लाइक ट्राई और एक्सेप्ट हटा देता हूँ, आई राइट p, आई गेट दिस एरर एंड ये प्रोग्राम फिनिश नहीं आ रहा। आई वांट कि प्रोग्राम फिनिश आए हमेशा, so what I will do is I'll use try and accept block and then again if I run error while converting n to integer, program finished. Is this clear to you all? Very basic understanding of exceptional handling. सबको clear है? Just give a thumbs up guys. Sir, I have a doubt. Yes. Suppose if we know the specific type of exception, then we can write after except now, like name error. Like. Yes, we can write. So will this come in term? We need to remember that name error, all types of error or no? Yes. See, बहुत सारे errors हैं but generally there are some few errors. वो error ना आप खुद भी identify कर सकते हो, like n is some value. ठीक है, यहाँ पे वैल्यू के लिए एरर आ सकता है क्योंकि मैं एक वैल्यू पास कर रहा हूँ इंटीजर में जो कन्वर्ट नहीं हो रही, देन इट विल रेज अ वैल्यू एरर। अभी मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ परम। ठीक है, इफ आई ट्राई टू राइट s of 10, okay, s of 1, what will be the output? Index error. No, s of 1,
अगर मैं A. सिर्फ 1 ए आएगा, राइट, ए विल बी द आउटपुट। बट अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ, सो यू विल सी कि यहाँ पे इंडेक्सेस इसके मैक्सिमम बन सकते हैं 4 तक, राइट, फ्रॉम 0 to 4, है ना। एंड इन माइनस इट विल गो टिल लाइक -5 to -1, है ना। नॉट इंडेक्स लिस्ट आउट ऑफ रेंज नहीं, इंडेक्स एरर आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वी विल नॉट एबल टू, ये जो है कोई ऐसा इंडेक्स है ही नहीं इस स्ट्रिंग में 10 नंबर पे कि मतलब इंडेक्स है ही नहीं, इट इज़ एक्सीडिंग द इंडेक्स जो भी प्रायर इंडेक्स है 0 to 4 है, उससे ज़्यादा अगर हम डाल रहे हैं सो इट इज़ रेजिंग एन एरर। तो ये इंडेक्स के लिए मतलब जब हम कोड रन कर रहे हैं तो कोड पे ना यू विल सी लाइक कौन सी लाइन पे एरर आया, अगर क्वेश्चन में भी आएगा तो आपको पूरा लाइन नंबर लिखा आएगा, ठीक है। एंड ऑन दैट लाइन नंबर वट एवर द कोड इज, इफ आई रन दिस एज ऑफ नाउ, मैं कुछ भी डालता हूँ पी, तो यू विल सी लाइक इंडेक्स एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एंड लाइन नंबर इज 39। तो आप यू विल सी लाइन नंबर 39 पे मैं कर क्या रहा हूँ, वी आर आई एम डूइंग इंडेक्सिंग, ओके। तो इंडेक्सिंग करते टाइम एक ही एरर आ सकता है, इंडेक्स एरर। तो ऐसे से करके इफ़ यू डू सम प्रैक्टिस ना, आपको पता चल जाएगा कि एरर किस बेसिस पे आ रहे हैं। वी हैव लाइक वेरियस टाइप्स ऑफ एरर। इफ वी स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन के अंदर सारे एरर आते हैं, वैल्यू एरर, इंडेक्स एरर, ओके, indentation error. Well, indentation error is like, ओके, इंडेंटेशन एरर तो जनरली नहीं आएगा, ठीक है। दिस इज वाई बिकॉज बिफोर इंटरप्रेटिंग पाइथन, लाइक पाइथन चेक्स ऑल द सिंटेक्स एंड ऑल, सिंटेक्स एरर, यस सिंटेक्स एरर, इंडेंटेशन एरर भी आ सकता है, इनफैक्ट ऐसी बात नहीं इंडेंटेशन एरर नहीं आ सकता, बट यस दीज आर लाइक सम Name बेसिक error. एरर। यस, नेम एरर, okay, file not found error, these are like some basic errors. If I forgot anything, I don't think, yes these are mainly to these error, yeah, type error is there, end of file type error, okay, okay, see type error will be there, okay, and type error, recursion error, रिकर्जन एरर आप लोगों ने भी देखा होगा, पहले आया था जब Sir, रिकर्जन in एक्सीड। previous example, that is type error or value error. It is a value error. Why value, why not type? हम convert तो type कर रहे हैं, right? Yes, attribute error also. See, बाकी तो बहुत सारे errors हैं, IO error, EOF error and all. Runtime, okay. ये जो syntax error है, indentation error है, these are runtime errors. Okay. If I'm not wrong, okay. I yes, this is runtime error. So see यहाँ पे ना we are converting a value, okay, हम वैल्यू कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये वैल्यू एरर आएगा। अब टाइप एरर कहाँ पे आ सकता है, इफ आई हैव अ स्ट्रिंग called as and if I have an integer called 5, if I try to add them, then this will raise an error, okay, this will raise a type error। अभी मैं इस पूरे कोड को कमेंट कर देता हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। आई विल सिंपली रन दीज 3 लाइन्स, here you will see type error। type error तभी आएगा whenever you use operators, okay। Oh sorry, yeah, compile time error, not runtime error, okay, runtime error is जब when your program is running, then जो errors आ सकते हैं like these, type error, index error and all, these are runtime errors। compilation time जो error आते हैं like जब code compile हो रहा होता है, it will check for syntax and indentation, okay, under the syntax like indentation only। so यहाँ पे ना, okay, whenever you misuse the operators, okay, within the value, तब आपका type error आएगा। so this is how you will get an hint कि कब आपका type error आ रहा है, ठीक है। ये तो टाइप एरर का हो गया। अभी लेट्स से आई विल राइट नेम इक्वल्स परम एंड इफ आई ट्राई टू प्रिंट नेम बट मैंने एन की जगह एम डाल दिया, दिस विल रिजल्ट में नेम एरर। वाई? बिकॉज एम ए नाम का कोई वेरिएबल नहीं है,
कोई वेरिएबल, कोई फंक्शन, कुछ भी नहीं है. डिड यू मीन नेम, ये मेरा पाइथन, लाइक दिस इज पाइथन 3.10, so that's why I'm getting this hint, did you mean name. But in the portal, IITM portal, Python version is 3.8, so वहाँ पे ऐसा नहीं आएगा, but वहाँ पे this much error you will get, name error, name MAME is not defined. Okay, so कुछ भी वेरिएबल पे if you are writing any wrong variable name या any wrong function name, then आपको एरर आएगा, that will be the name error. Okay, ये बेसिक हो गया. सिंटेक्स एरर तो बहुत लाइक, सिंटेक्स एरर विल बी समथिंग लाइक दिस. if I am trying to create a dictionary and this, तो ये तो आपको यहीं पे दिख रहा होगा, print d, you will see syntax error, invalid syntax. अब इसके आगे this is the, yes, hint, again this hint is coming after like Python 3.10. उसके पहले नहीं आएगा, उसके पहले यू विल गेट सम एम्बिगुअस, कुछ डिफरेंट एरर आएगा, बट इतना एरर यू विल रिकॉग्नाइज. जस्ट चेक द नेम, जो फर्स्ट वर्ड होगा ना एरर का, दैट विल बी द एरर टाइप, किस टाइप का एरर है, उससे आप यू कैन रिकॉग्नाइज. तो यहाँ पे सिंटैक्स में गड़बड़ थी, ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग सिंटैक्स एरर. इफ आई लाइक क्रिएट अ कंडीशन, इफ 10 is greater than 12 and okay, if 10 is greater than 12, print hello. ओके, अब आप लोग मुझे बताओ, सिंटेक्स एरर या इंडेंटेशन एरर? यस, सिंटेक्स, सबसे पहले सिंटेक्स एरर आ जाएगा फ्रॉम लाइन नंबर 53. ओके, इफ आई रन दिस यू विल सी सिंटेक्स एरर. इफ आई राइट, इफ आई पुट अ कॉलन हियर, देन अब अगर मैं रन करूंगा, अब आएगा इंडेंटेशन एरर. ठीक है, सो कोलन के बाद ही इंडेंटेशन वी राइट, whether it's a function, whether it's a any kind of block, if else or loop or anything. ठीक है, so this is how like basic आप कोड लिख लिख के ना, whenever you try, आपको क्लियर होता जाएगा. and I have also like I have a cheat sheet, if I like okay, open containing folder. So this is like a cheat sheet, you can say, error cheat sheet. Here I have written like some describe some errors, attribute error कब आएगा, index error, type error, key error and name error. I have already shared this, I think 2-3 times in the G form as well. I will share this sheet in the groups as well, okay, as a PNG, so you guys can refer to this cheat sheet as well. okay, इसमें बस 4-5 errors हैं mainly, और भी बाकी सारे एरर्स हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखे कुछ मेन एरर्स, बट सारे एरर्स को यू डोंट नीड टू रिमेंबर. अगर आप नॉर्मल कोड करोगे, कोड पे ट्राई टू लाइक राइट वेरी रॉ कोड, ओके, देन आपको जो भी एरर आएंगे यू विल अंडरस्टैंड कि एरर क्यों आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं. सो दिस इज लाइक बेसिक. अब लेट्स गेट बैक टू द एक्सेप्शनल लाइक हैंडलिंग. So we were there, right. अभी द थिंग इज, हम या तो एक्सेप्शन के साथ हैंडल कर सकते हैं, या तो हम एक एक एरर को हैंडल कर सकते हैं. ठीक है, लाइक यहाँ पे ओके, लेट्स से व्हाट आई एम डूइंग इज, मैंने ना एक इंटीजर ले लिया, मान लो वो इंटीजर भी मेरे पास आ गया. व्हाट आई विल डू इज, आई विल ट्राई टू कन्वर्ट दैट इंटीजर इनटू, डिवाइड दैट इंटीजर बाय 0. अब यहाँ पे एक एरर आएगा, जीरो डिवीजन एरर, like we cannot divide any number with 0, right? So that will raise a zero division error. Ab okay, if I run this code, if I enter 5, what do you guys think, कौन सा error आ सकता है, value error or zero division error? Okay, yes, it will be zero division error. Why zero division error? क्योंकि line number 30 will be executed successfully. Okay, क्योंकि इंटीजर पे 5 विल बी लाइक कन्वर्टेड टू एन इंटीजर, बाय डिफॉल्ट इनपुट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग, एंड देन जब वो इंटीजर को 0 से डिवाइड करने जाएंगे देन इट विल रेज एन एरर. एंड यहाँ पे एरर शो नहीं हो रहा, वी कैन चेक दैट एरर एज वेल. हाउ, लाइक आई विल राइट एस एंड ई और एरर एनीथिंग, तो वो जो भी एरर की डिस्क्रिप्शन होगी ना, वो एरर इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, एरर में, एंड आई कैन फर्दर प्रिंट दिस. नाउ इफ आई रन दिस, I will type, if I type 5,
it will give n2 integer till this and division by 0. Okay, so this is the error. If I try hello, now I'll get invalid literal for int with base 10 hello. Okay, so you guys can now understand ki see, there are like two different types of errors are coming. Abhi, generally, like whenever we do exceptional handling, it is like a very bad approach if you use if you handle the errors using exception class. You have to like you should handle each and every error in a different except block. Okay, how? Like अगर सबसे पहले we will handle value error. So I'll write value error, and in value error I will simply write error while converting n to integer. So ये जो यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है, it justifies the error कि we are not able to, it is not able to convert that error into integer. Now I'll write except, again except, and this time I will write zero division error, and here I'll write error while dividing n with 0. Okay, and then जो भी बाकी के errors होंगे that will come here. I'll simply like write error. Okay, now if I run this, if I enter 5, what do you guys think, which line will be executed after? Okay, will we get any error? मैं यहाँ पे अगर लिखूँ um, like no error, A, B value error, C zero division error, and D any other error. So you guys tell me, if I type in 5, अगर मैं 5 डालता हूँ, then what will be the answer like from A, B, C, D? Okay, only Vedika is answering. What about rest of like everybody else? जो भी आप लोगों को लग रहा है, anything. Okay. Okay. See. So yes, the answer will be C. Like how? Okay. अगर मैं यहाँ पे 5 डालता हूँ ना, so this will easily convert that number to integer. उसके बाद यहाँ पे error आएगा, line number 31 पे error generate होगा. वो जो भी error होगा, that will be the zero division error. So first it will check with this except block. Is this except block handling that zero division error? No, it is handling value error. तो ये ignore हो जाएगा. Then it will check for this. Is this except block handling zero division error? Yes. Then यहाँ पे error while dividing n with 0. So ये same as if else ladder. Okay, it will work. And if I run this, you will see error while dividing n with 0. Now if I type in hello, I'll get error while converting n to integer. Okay. Abhi if I like modify it a little bit. Now tell me, if I like write 5, तो क्या आएगा? What will be the output? A, B, C, D. For this code. Anybody? Okay, am I audible? The zero division error. All right. Okay. Same C. All right. Zero division error आएगा. Okay. Which line will be executed? Line number 33, line number 35, or line number 37? That you guys like tell me. Line number 37. All right. 37. 35. 37. 37. Okay. 36, 37. That is fine. Okay. How many of you are saying line number 35? Just raise your hand or something. How many of you are saying line number 33? Okay, कोई भी नहीं. So everybody is okay. One person. So okay. Now if I run this, hit enter.
I'll get division by 0. But क्या ये statement इन दोनों से match कर रही है? No. This is coming from this line number 33. And how? Can anybody explain how? अगर like आपको Because zero division error. zero division error, that is fine. But why line It is number not 33 is being printed? Why not line number 37? because the first exception is it is a super class of all exceptions. Yes, 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 yes. This exception contains all the exceptions, value error, zero division error, all the errors. So जितने भी errors है ना, वो सारे यही handle कर लेगा, तो नीचे वाला block access ही नहीं होगा. तो यहाँ पे you guys can also see code is unreachable, it is written. Same for this as well. Okay, so that is why like we are getting this. Now after these except, okay, we have one more thing called else block. Okay, else, what else will do? else block हमारा तभी execute होगा जब हमारा try block अच्छे से execute होगा. Okay, if our try does not raise any error, if the try block does not raise any error, then else block will be executed. Like I'll write n is n, and let me remove x as of now. ठीक है, I don't need zero division error. This is else block and this is it. Now if I run this, I'll write 10, then n is 10 is being printed. Means सबसे पहले try block execute हो रहा है. If this try block execute successfully, then else block will execute. Okay, then rest of the code will execute. मतलब अगर हमारा कोड एरर नहीं दे रहा एंड वी वांट कि जब कोड एरर ना दे एंड कुछ फंक्शनैलिटी वर्क करे, then we can use this else block. Okay, if I like input any vague value, let's say hello, this will raise value error and else block execute नहीं होगा. You will see error while converting into integer and ये वाला block execute नहीं हो रहा. Okay, so is this clear to you all? Okay, बाकी सबको clear है? All right, now just one more thing finally. इसके बाद एक tricky question करते हैं, ठीक है? Like let's say I will always run or something, be execute. I will always be execute. I will always run. Simply मैं इतना लिख देता हूँ. Okay, or okay, you can simply write code mode or something like that. That is like any vague statement. See, what finally block will do is, doesn't matter try block work कर रहा है, except आ रहा है, else आ रहा है, finally will always run. Okay, doesn't matter कि error आ रहा है या exception handle कर रही है या else block work कर रहा है, finally run करेगा ही करेगा. It is like the code mode कि ये work होगा ही होगा. Okay, finally के अंदर जो भी है. It means if I type in 5, then it will run n is 5 because else is running. Then finally execute hoga. That is, I will always run and then program finished. Okay. If I type in hello, then error while converting into integer and then I will always run and then program finished. Okay. Now, is it understood? What is the use of finally, like how finally works or when finally works? Okay, अब एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. आई होप अगर किसी ने करा हो तो तभी लाइक check. Okay, check will have n try n into int of n except, okay, return, let's say n is positive, except value error, return n is not an integer. Then except let's say any other exception we are handling, or let's ignore that exception as of now, else return n is a number. Okay, finally return n
n is passed or something like this. Or okay, n is passed. What basics are? If I print this check of, let's say, 10, what will be the answer? Let me write the options. A, then B, n is not an integer. C, n is a number. D, n is passed. Okay, मैं अभी धीरे धीरे B. करके जाता हूँ. Wait, let's go one by one. What will be the answer? A, B, C, D. A. No, B. Okay, B. Yeah. Oh, 10. Okay, A. All right. A will be the answer. N is positive. ठीक है? This is clear to everybody? Yes. बहुत basic था. Now, अब बताओ. What will be the answer? A, B, or C? I have added A else only. block. Okay, A only. A. ठीक है. If I A run only. A, okay, that is fine. अभी थोड़ी सी एक ट्रिक करते हैं. Now, tell me, what will be the answer? A and D. A and D. A and D. Okay. अगर MCQ हुआ तो? Multiple. No, 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 no. D. 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 A नहीं होगा. सबसे पहले तो ये रिटर्न हो जाएगी ना. They should give multiple correct. No, no, no. D only. Okay, No? they should get multiple correct. If they give MCQ, like will you Their write, mistake, I think. will you like open discourse in the exam and create a post? Yeah, will you mail to support? No, right? MCQ, see, इस question पे MCQ आ सकता है. Mark for review. Okay. Yes. D will be the answer. How, why? See, n is passed is being printed, n is positive is not being printed. So this is, you can say, an Easter egg of Python. मतलब some like return statement दोनों में है. Try and finally, else पे भी है, except पे भी है. Even if I pass in this hello, still I will get n is passed, not n is not an integer. Okay. Why? Like return चाहे जिसमें भी हो, अगर finally में we have some return statement ना, then उसको priority मिलेगी. ठीक है? Then try or accept or else इन सबको priority नहीं मिलेगी. First priority will be given to return statement of finally block. Okay. So this is like a tricky question. ये जिसने like करा होता उसको Sir, clear if होता. all returns are replaced with print, then both will run. Means So for the n is हाँ, equal to int n, that line number 29 should raise an error, right? line number 29. 29. Yes, it is raising this error. Okay, but because we have finally here. Okay, अगर मैं finally हटा देता हूँ, क्योंकि finally run होगा ही होगा, and finally has a return statement, तो उसकी return statement consider होगी. If I like print here like error came, and now okay, error came, that's it. If I run this normally, error came and is not an integer. If I write finally return n is passed. Okay. Now if I run this, you will see error came, but n is passed. Can you see? Okay, just because we are not printing it, so it's not appearing. It's not an integer. You're just returning it. Okay. Yes, I am returning it. So return pay it like it behaves some like in a different manner. Is it clear to everybody? All right. So यही था एक tricky question. And ऐसा question आ सकता है. अब इस पे MCQ आएगा. Finally has highest return priority. Doesn't matter else पे else पे return है, except पे return है, कहीं भी return है. इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा या ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा. Like I just want to clear, error came will be executed, just that return statement of finally will execute. Okay, इसकी return statement it will override with this. Okay, so this is like you can say
गोड मोड जो मैंने अभी पहले लिखा था, बिकॉज फाइनली का हमेशा एग्जीक्यूट होता है, एंड यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने भी लाइक थोड़ी गड़बड़ कर दी थी एक बारी, सो आफ्टर डैट आई रिमेंबर दिस कि फाइनली ऑलवेज फाइनली के अंदर अगर रिटर्न स्टेटमेंट है डैट विल बी एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम. इज दिस क्लियर टू एवरीबडी अभी? बिकॉज नाउ वी विल मूव ऑन टू अनदर टॉपिक दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ओके, ग्रेट. नाउ OOP, which is object oriented programming. It is OOP, not OOPS. Okay, बहुत बेसिक, मैं भी ऐसे बोलता था OOPS. That is fine. Well, now object oriented programming. How many of you have done OOP? Doesn't matter in Python या किसी भी लैंग्वेज में. Okay, only one, two, only two people. Okay, rest are I think new to coding maybe. I'm not wrong. या अगर कोडिंग अगर आपने जावा में नहीं करी देन ऑब्वियसली आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको नहीं पता होगी. अगर आपने बेसिक्स ही करे हैं तो, अगर आपने सिर्फ सी करी है. कंसेप्ट नॉट क्लियर? ओके, सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, या सी प्लस प्लस में वी हैव OOP. सो ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हम जब भी लेट्स से मैंने ना एक पूरी पाइथन की स्क्रिप्ट लिख दी. लेट्स टेक द ओके एन एनोलॉजी ऑफ व्हाट्सअप मैसेजेस. ओके, मैंने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आज के लिए लाइक प्रिपेयर करा है ऑफ व्हाट्सअप मैसेजेस. सो लाइक मैंने ना क्या किया, लाइक आई हैव अ स्क्रिप्ट. ओके, मैंने एक पाइथन स्क्रिप्ट बनाई जिसमें मैं व्हाट्सअप मैसेज के लिए पूरा फंक्शनिंग कर रहा हूँ. लाइक एक मैंने मैसेज नाम का वेरिएबल बना दिया. उस मैसेज पे लेट्स से मैं यूज़र से इनपुट लेता हूँ मैसेज, या let's say like something like this. I'll say write message, and what I will do is I'll use global message equals message. Okay, ये तो सबको अब क्लियर होगा, पता होगा कि what it is doing. It will override the global variable, है ना? Override the global variable with whatever value we are passing. This is clear. And I have like one more method, send message, which will simply like let's say यहाँ पे मैं कोई API कॉल कर रहा हूँ या कुछ भी I am doing, it is sending a message in the WhatsApp, okay, on behalf of me or something. Okay, let's say I'll simply write print sending message, and I'll print message. Okay, and I'll write message has sent. Message has been sent. Then I'll create one more function, edit. Okay, edit message, and यहाँ पे ना what I will do, I'll create a new message. In edit, basically edit, जब आप message edit करते हो, you edit the old message with some new message, right? That means simply what we are doing is I am setting message equals new message. Okay, and I'll write editing message has been edited. ओके, सो ऐसे करके मैंने 2-3 फंक्शंस बना लिए. एंड एक Then in edit, why the parameter is new message? Why the parameter is new message? मैं मैसेज भी कर सकता हूँ. दैट इज लाइक जब हम एडिट कर रहे होते हैं कोई भी मैसेज को, तो हम एक न्यू मैसेज उसकी जगह डालते हैं पुराने मैसेज की जगह, राइट? डजेंट मैटर हम एक टाइपो फिक्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दैट मैसेज विल बी कंसिडर्ड एज अ न्यू मैसेज, नॉट एन ओल्ड मैसेज, है ना? सो मैंने वेरिएबल नेम ऐसा रखा है न्यू मैसेज, जिससे आपको लाइक थोड़ा क्लैरिटी रहे कि पुराने मैसेज को हम न्यू मैसेज से रिप्लेस कर दे रहे हैं. ठीक है, पहले मैसेज की But वैल्यू थी input मैसेज. we will take old message only, na? सॉरी, Input of that function will be old message. नो नो नो, मैं ग्लोबल मैसेज को यूज़ कर रहा हूँ ना. मैं ग्लोबल मैसेज को ही राइट कर रहा हूँ, उसी को ही आई एम सेंडिंग. ओके, इफ आई यूज़ ग्लोबल हेयर, सेंड पे मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, वैसे कोई पास करने की ज़रूरत नहीं. Send, I'll simply write message. Okay, what I am doing is I'm writing, I have this message here. Okay, और okay, मैं एक बार ही delete function बनाता हूँ, then उसके बाद I'll like show you what I am doing mainly. Global message
एंड डिलीट मैसेज के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली डिलीट कर दूंगा ये मैसेज वेरिएबल ही। ओके, मैसेज वेरिएबल ही उड़ा दूंगा, बात खत्म अभी के लिए फ़िलहाल। बाकी हम कुछ भी कर सकते हैं, इतना कोड है। बट दिस कोड इज लाइक, अगर मैंने एक ऐसी स्क्रिप्ट बनाई एंड इफ आई रन दिस, इट विल रन लाइक स्पेसिफिकली फॉर हर एक यूज़र के लिए। अगर मान लो 100 यूज़र आर यूजिंग दिस स्क्रिप्ट, देन हर एक यूज़र को अपनी अपना ये कोड रन करना पड़ेगा। सेम कोड वोंट बी रन लाइक एक कोड। ओके, मान लो कि यूज़र अभी जो है मैं हूँ परम, ठीक है, फ़ोन नंबर वगैरह सारी चीज़ें सेट है। आई हैव जस्ट लाइक व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम लाइक राइटिंग द मैसेज फर्स्ट, राइट मैसेज, एंड मैसेज में मैं लिख रहा हूँ हेलो, सो अनाउंसमेंट रिगार्डिंग पाइथन सेशन। ओके, दिस इज वन मैसेज विच आई हैव रिटन, एंड उसके बाद मैंने एक ये मैसेज लिख दिया। तो अब अगर मैं मैसेज की वैल्यू देखूंगा ना, तो मेरे जो मैसेज की वैल्यू है दैट विल बी, इफ आई रन दिस, दैट विल बी ओके। देखो, पहले मेरा यूज़र तो परम था, मैसेज की वैल्यू मेरी स्टार्टिंग में एम्प्टी है ना। तो मैसेज की वैल्यू राइट मैसेज करने के बाद हो गई हेलो अनाउंसमेंट रिगार्डिंग पाइथन सेशन। इतना क्लियर है सबको व्हाट आई एम डूइंग हियर? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? जस्ट दिस कोड। ओके, ओके, ऑल राइट, ठीक है। बाकी सारे फंक्शंस को अभी के लिए फिर इग्नोर कर दो फिलहाल। लेट्स फोकस ऑन जस्ट वन। मैं इसको ना यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। सी, मैंने एक मैसेज नाम का ग्लोबल वेरिएबल बनाया। राइट मैसेज एक फंक्शन है। इन द राइट मैसेज व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम पासिंग अ मैसेज, जो भी मुझे मैसेज लिखना है, एंड दैट ग्लोबल मैसेज को मैं अपडेट कर रहा हूँ इस मैसेज से। दैट मीन्स मुझे ये मैसेज लिखना है, जो भी मैसेज जो मैं इस फंक्शन में पास कर रहा हूँ ना, दैट विल बी माई मैसेज, जो मुझे मैसेज सेंड करना है, लिखना है, जो भी करना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। इतना क्लियर हो गया कि हाउ आई एम राइटिंग अ मैसेज लाइक दिस इज। यू विल फील कि ये थोड़ा क्या वेग अजीब लग रहा है। Normally तो what we simply like, we open the keyboard and click on that input box and prompt and we just simply write the message. Let's say ये मैंने automate किया है, ठीक है। So if you try to automate एक pivot kit करके एक है, I think if I'm not wrong, एंड ऐसे करके ना कुछ मॉड्यूल्स हैं फ्रॉम विच वी कैन ऑटोमेट आर व्हाट्सअप मैसेजेस कि वो हमारे बिहाफ पे व्हाट्सअप मैसेजेस भेज सकता है, रीड कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। एंड उस पर वी डू कि लाइक नॉर्मली तो हमारे पास व्हाट्सअप पे ही होता है ना, ऐसा प्रॉम्प्ट होता है इनपुट का, जहाँ पे हम लिखते हैं हेलो समथिंग, ऐसे भेजते हैं। तो उस पर तो नहीं होगा, डैट विल बी अ सिंपल स्क्रिप्ट। उस स्क्रिप्ट पे क्या होगा, यू विल हैव सम फंक्शंस लाइक दिस कि राइट मैसेज और सेंड मैसेज और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एंड उस राइट मैसेज पे मैंने एक एडिशनल फंक्शन बना लिया यहाँ पे कि एक राइट मैसेज जो है मेरा एक मैसेज लिख देगा, एंड जो भी मैसेज मुझे लिखना है डैट विल बी दिस। ओके, एंड ये पूरा उसके ऊपर जो भी फंक्शनैलिटी होगी, वेदर इट्स लाइक डिलीटिंग द मैसेज, एडिटिंग, और लेट्स से sending the message, okay, that will use this global message variable. Okay, so I am doing this only. इतना क्लियर है अभी सबको? दिस मच लाइक व्हाट आई एम डूइंग हियर? ओके, बाकी सबको क्लियर है? अभी जस्ट बी विद मी फॉर फ्यू मोर मिनट्स, आपको बाकी भी क्लियर हो जाएगा। नाउ आई विल लाइक यूज दीज मेथड्स एज वेल। ओके, आई हैव वन मेथड कॉल्ड सेंड मैसेज, ठीक है। सेंड मैसेज क्या करेगा, जो भी मेरा ग्लोबल मैसेज है ना, उसको वो सेंड कर देगा, ठीक है। करंटली आई हैव दीज 3 लाइन्स, बट if you use like the WhatsApp API something, so that will in real it will send the message in the respective group or to the respective contact जिसको भी आप सेंड करना चाह रहे हो, ठीक है। सो मान लो मैंने उस फंक्शनैलिटी को भी हाइड करके रखूंगा, अभी बस इतने से मैसेज है विच सिंपली लाइक विच इज शोइंग मी कि हाँ ये मैसेज सेंड हो गया। नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैंने एक बार मैसेज लिख दिया, I want to send the message. Okay, send, just send, that's it. If I click on send, so you will see ये मेरा मैसेज था,
एंड सेंडिंग मैसेजेस, जो मैसेज सेंड हो रहा है वो ये है, एंड मैसेज हैज़ बीन सेंट। ओके, मैंने इतना कर दिया, जो मेरा मैसेज था वो मैंने सेंड कर दिया, एंड आई एम यूजिंग द ग्लोबल वेरिएबल मैसेज। ओके, इतना क्लियर है? इज दिस क्लियर, द सेंड एंड राइट मैसेज फंक्शन? लाइक यू विल सी, जस्ट अभी के लिए इतना मान लो कि these print statements are simply giving us the prompt की like telling us कि हाँ ये चीज़ हो चुकी है, ये फंक्शनैलिटी वर्क कर चुकी है। नाउ वी हैव लाइक वन थिंग कॉल्ड एडिट मैसेज। लेट्स से मुझे मैसेज को एडिट करना है, एंड एडिट पे क्या करूँगा मैं, हेलो लिख के अनाउंसमेंट रिगार्डिंग पाइथन एंड टर्म रिवीजन सेशन। ओके, ये मैंने न्यू मैसेज पास कर दिया। मैसेज हम जब एडिट करते हैं, एडिट में या तो हम कुछ टाइपो फिक्स करते हैं, या हम मॉडिफाई करते हैं, या हम ऐड करते हैं, है ना? एम आई राइट? व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कहीं भी इफ यू सेंड द मैसेज, Yeah. है ना? तो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, जो भी चाहे वो टाइपो फिक्स है कुछ भी है, मैं सिंपली एडिट मैसेज फंक्शन क्या कर रहा है, इट इज ओवरराइडिंग, लाइक इट इज यूजिंग दिस ग्लोबल मैसेज वेरिएबल, और जो भी मैंने न्यू मैसेज पास किया ना उसको ये सेट कर रहा है जो भी मेरा ओरिजिनल मैसेज था। एंड इसके बाद ना मैं मैसेज हैज़ बीन एडिटेड, एंड इसके साथ में सेंड को भी कॉल कर देता हूँ कि मैसेज एडिट होने के बाद न्यू मैसेज सेंड हो जाएगा। ठीक है, नाउ यू विल सी हाउ, लाइक इफ आई रन दिस, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, ये मेरा मैसेज है, सेंडिंग मैसेज, ये मेरा मैसेज सेंड हो गया। नाउ मैसेज हैज़ बीन सेंट। ओके, नाउ मैसेज हैज़ बीन एडिटेड, फिर अगेन इट इज सेंडिंग द मैसेज, वाई, क्योंकि आई हैव कॉल्ड सेंड हेयर, and now this message is being sent. Will you like, are you able to understand what is happening now? So सबको it's a bit too confusing. I didn't understand like why. What is the purpose of such a confusing this structure? okay, I'll tell you, अभी के लिए तो it is, you will feel why all this। अभी देखो, the thing is, यहाँ पे आई एम जस्ट ट्राइंग टू गो टू वन कंक्लूजन कि हम यहाँ पे एक ही मैसेज के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, हमारे पास एक ही मैसेज है। अगर हम बहुत सारे मैसेजेस भेजते हैं, बहुत सारी अगर हम चीज़ें करते हैं, तो हमें उसके लिए अलग अलग, लाइक आई हैव टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ दिस फाइल, एंड आई हैव टू लाइक यूज अनदर फाइल, लेट्स से यस सी। देखो मुझे क्या है, अगर यहाँ पे तो मैं एक ही मैसेज के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मान लो मुझे एक और मैसेज करना है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट वन मोर फाइल नेम हियर, एंड आई हैव टू कॉपी दिस होल कोड, एंड आई हैव टू रन दिस, एंड यहाँ पे मैं दूसरे मैसेज के साथ काम कर सकता हूँ। ये मान लो मेरा हर एक एक फाइल पे ना एक एक यूनिक मैसेज है। ठीक है, तो ऐसे करके कोड ना काफ़ी ज़्यादा लाइक फैल जाता है, एंड वी आर नॉट एबल टू लाइक लाइक ट्रीट इट एज अ सिंगल कोड। ये पूरा एक सिंगल चीज के लिए है। ठीक है, इतना आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? दिस इज फॉर अ सिंगल थिंग कॉल्ड फॉर अ मैसेज। इज दिस अंडरस्टूड? इतना सा, दिस इज फॉर अ सिंगल मैसेज, दिस होल राइट मैसेज, सेंड, एडिट एंड डिलीट, दिस इज फॉर अ सिंगल मैसेज। ठीक है, अगर मुझे एक और मैसेज करना है, मुझे एक और फाइल बनानी पड़ेगी, सिमिलरली एक और करना है, एक और फाइल, ऐसे ऐसे करके हजारों फाइल्स। दिस इज नॉट व्हाट एक्चुअली वी डू। तो इसकी जगह व्हाट वी विल डू इज वी विल एनकैप्सुलेट एवरीथिंग इन अ क्लास। ओके, उससे ना हमारे पास एक ब्लूप्रिंट बन जाएगा। ब्लूप्रिंट इज लाइक जो हमारे मैप्स होते हैं इन रियल, जैसे हमारी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट सिंपली सिग्निफाइज कि कैसे हमारा पूरा लाइक हाउ द होम विल लाइक हाउ द बिल्डिंग विल लुक लाइक लिविंग। जैसे लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ होम की लिविंग रूम कैसा दिखेगा, किचन कैसा दिखेगा, क्या क्या होगा, इट यस इट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर। ओके, तो हम ना क्लासेस की हेल्प से, ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से वी कैन क्रिएट अ स्ट्रक्चर, एंड उस स्ट्रक्चर को वी कैन यूज एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, सो दैट इज द मेन पर्पस। अभी आपको कंफ्यूजन हुई? मेन पॉइंट बस यही कि कंफ्यूजन आपको बतानी थी कि क्या कंफ्यूजन हो सकती है। उसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए वी विल यूज लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अभी यू विल फील कि ये तो ठीक है, ये इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए वी आर यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बट इन फ्यूचर ऑल्सो आप जो है वेरियस चीज़ें, वेरियस बाकी सारी चीज़ों के लिए यू कैन क्रिएट यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लाइक आई विल लाइक गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके लिए उससे पहले ओके
Just a basic thing. Like I'm trying to create one more example. Okay. Sare, have you all worked with tried ChatGPT? How many of you have used ChatGPT? Just like give a thumbs up. सबने करा होगा यूज, है ना? और कोई मॉडल किसी ने यूज करा है? जेमिनाई और क्लॉड? ओके, बहुत सारे आपने मॉडल्स यूज करे होंगे. सारे मॉडल्स का काम क्या है? दे टेक सम, यस, को पायलट एज वेल. मेरे पास यहाँ पे को पायलट है विच आई हैव डिसेबल्ड एज ऑफ नाउ. सबका काम क्या है? इट टेक सम प्रॉम्प्ट, उस प्रॉम्प्ट पे इट जनरेट सम रिस्पॉन्स एंड गिव इट टू यू, है ना? सबका काम सेम है, राइट? द अंडर, yes, perplexity also, the underlying, the work, it is same for everybody. Am I right? कि they take a prompt, okay, जो भी एक prompt आया, they take a prompt and उन prompt के base पे they generate some response. This is their work, okay. and वो generate कैसे करते हैं? that is AIML. उस पे हम नहीं जा रहे. इतना तो सबको पता है ना, चाहे वो ChatGPT हो, चाहे वो क्लॉड हो, चाहे वो परप्लेक्सिटी हो, और लेट्स से चाहे वो को पायलट हो या जेमिनाई हो. एम आई राइट? सबका यही काम है, एक प्रॉम्प्ट लेते हैं एंड एक प्रॉम्प्ट को जनरेट करते हैं. सो दे आर फॉलोइंग अ सर्टेन ब्लूप्रिंट. कि ब्लूप्रिंट ये है कि दे विल टेक अ प्रॉम्प्ट एंड दैट प्रॉम्प्ट विल फीड इनटू सम मॉडल, एंड मॉडल जो है कुछ प्रिडिक्शन करेगा, ठीक है? एंड वो प्रिडिक्शन, दैट प्रिडिक्शन विल बी द रिस्पॉन्स, एंड वो रिस्पॉन्स को जनरेट कर रहे हैं. ये आप लोगों को इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होगी, राइट? AIML, लाइक उसके पीछे एक मशीन लर्निंग मॉडल होता है एंड वो मॉडल जो है कुछ प्रिडिक्शन करता है एंड दैट प्रिडिक्शन इज द जनरेटेड रिस्पॉन्स. इतना सबको क्लियर है? दिस बेसिक थिंग. अगर किसी को नहीं क्लियर, यू गाइस कैन आस्क. ओके, आई थिंक सबको क्लियर है. सो हर एक AI मॉडल का काम यही है. इट बेसिकली टेक्स द प्रॉम्प्ट एंड वो मॉडल में फीड करता है, एंड नॉट फीड, इट बेसिकली डू द प्रिडिक्शन मॉडल को यूज़ करके, एंड जो भी रिस्पॉन्स बनता है उस रिस्पॉन्स को, लाइक इट सिंपली जनरेट द होल रिस्पॉन्स. चाहे आपने स्टोरी लिखने को कही हो, मेल लिखने को कही हो, या कुछ भी कहा हो, ठीक है? कुछ भी कहा हो, दैट इज़ अप टू यू. मेन वर्क जो है वो यही है. अभी ये वर्क लाइक अगर ऐसे जैसे चैट जीपीटी पे यू ऑल नो कि हम डिफरेंट चैट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, राइट? एंड डिफरेंट यूजर्स भी होते हैं. जैसे अभी देर आर थाउजेंड्स ऑफ यूजर, लैक्स ऑफ यूजर्स हु आर यूजिंग चैट जीपीटी. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ चैट जीपीटी. तो इसका मतलब क्या? दे हैव लाइक सम काइंड ऑफ दिस, लेट्स से गेट प्रॉम्प्ट और समथिंग लाइक दिस. तो ऐसा कुछ नहीं होगा लाइक जनरेट रिस्पॉन्स. तो यू गाइस लाइक इट कैन बी समथिंग लाइक कुछ ऐसा एक कोड हो सकता है उनके पीछे कि दे लाइक एक दो फंक्शंस होंगे. फर्स्ट फंक्शन विल टेक द प्रॉम्प्ट, जो भी प्रॉम्प्ट लिया. सेकेंड विल सिंपली जनरेट द रिस्पॉन्स. लेट मी लाइक रिमूव ऑल दिस. ओके, इतना यू गाइस अंडरस्टैंड? इज दिस अंडरस्टूड? इतना तो होगा, है ना? बाकी सब भी एक बारी लाइक you guys can tell me like yes or no. अगर आपको समझ आ रहा है that is fine, if not you can write no as well, okay? All right, so this, they will like take a prompt and they will generate the response based upon that prompt. तो अब क्या है like thousands users are using chat gpt at same time, okay? तो इसका मतलब क्या? उन्होंने ऐसे लाइक सेवरल फाइल्स बनाई होंगी, मेन डॉट पी वाई, कॉपी मेन डॉट पी वाई, मेन डॉट लाइक मेन डॉट पी वाई, मेन टू डॉट पी वाई, मेन थ्री डॉट पी वाई, मेन फोर डॉट पी वाई. नहीं ना, सारे को वो एक ही फाइल से रन कर रहे होंगे. लाइक ये तो नहीं ना कोड सब में रेप्लिकेट हो रहा है हर एक में, हर एक यूज़र के लिए कोड कॉपी पेस्ट हो रहा है. नो, राइट? है ना? कोड तो एक ही यूज़ हो रहा है बैकएंड पे, अगर आप लोगों को पता होगा. then how it is being used, like they are using a blueprint is a like single एक prompt. blueprint क्या होगा? that will take a prompt and it will generate the response, and वो blueprint को बार बार reuse कर रहे हैं, okay?
अगर आपको सेम कोड को यूज़ करना है विद द स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शनैलिटीज़, जैसे अभी मैंने पहले मैसेज पे गया था, आपको यूज़ करना है, आपको कुछ वेरिएबल्स, कुछ फंक्शंस एक ही पर्टिकुलर चीज़ के लिए रखने हैं, then you can use object oriented programming. It basically like encapsulate, it basically like सारी चीज़ों को एक साथ रखता है, ठीक है, एक साथ लाइक यू कैन से स्टोर करके रखता है, सो डैट आगे से मतलब अगर हमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो हम एक स्पेसिफिक पे चेंज करें, बाकी सब पे वो चेंज रिफ्लेक्ट ना करें। मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। अभी एक बहुत बेसिक सा बना लेते हैं, लेट्स से एक क्लास ब्लूप्रिंट। एक होता है ब्लूप्रिंट के आगे बनते हैं उसके इंस्टेंस। ओके, इंस्टेंस आर द ओके, लेट्स से मैं एक ये ब्लूप्रिंट बनाता हूँ, क्लास मॉडल। ओके, मॉडल इज अ ब्लूप्रिंट। उस मॉडल में क्या होगा, दो चीज़ें तो होंगी, एक प्रॉम्प्ट होगा, मतलब दो फंक्शन होंगे, जो भी ये चैट जीपीटी एंड ऑल मॉडल्स व्हाट दे डू इज दे टेक अ प्रॉम्प्ट एंड दे जनरेट अ रिस्पॉन्स, ठीक है। दिस इज अ ब्लूप्रिंट, ऐसे ही वर्क करते हैं सारे एआई मॉडल। मैंने इस कोड को इस लाइन को एक कोड में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज अंडरस्टूड। ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट बोथ आर सेम थिंग्स, ओके, फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इतना सबको क्लियर है? मैंने इस लाइन को एक कोड में कन्वर्ट कर दिया। अभी डोंट अंडरस्टैंड द कोड बट यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज टू फंक्शंस, राइट? ये दोनों फंक्शंस तो आप लोगों को पता होंगे। नाउ सी, ये मॉडल मैं ना इस मॉडल से मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत सारे इंस्टेंस बना सकता हूँ। इंस्टेंस लाइक एक चैट जीपीटी है, दैट इज ऑल्सो मॉडल। वो चैट जीपीटी के पास भी सेम फंक्शंस है लाइक गेट प्रॉम्प्ट एंड जनरेट रिस्पॉन्स। सिमिलरली एक क्लॉड है, उसके पास भी सेम यही है। तो आई एम जस्ट कॉलिंग द मॉडल क्लास। इट मीन्स चैट जीपीटी भी मेरा एक मॉडल है, क्लॉड भी मेरा एक मॉडल है, जेमिनाई भी मेरा एक मॉडल है, ओके। एंड तीनों मॉडल सेम काम करते हैं, रिस्पॉन्स लेते हैं, जनरेट करते हैं, प्रॉम्प्ट लेके रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। मैं उसी पे जा रहा हूँ। नाउ दिस मॉडल, दिस इज अ टेम्पलेट ब्लूप्रिंट और अ क्लास, ओके। इसके तीन नेम यू कैन से ब्लूप्रिंट, template and class, and these three things, chat gpt, claude and gemini, these are instance of this class, okay। मतलब ये इन सब चीज़ों को यूज करके बने हैं, ओके। नाउ इज इट अंडरस्टूड? लाइक इतना सबको क्लियर है कि वर्किंग सबकी सेम है? ये सबको क्लियर है ना कि वर्किंग सबकी सेम है, गेट प्रॉम्प्ट एंड जनरेट प्रॉम्प्ट। जस्ट दैट मॉडल के अंडरलाइन टेक्नोलॉजी डिफरेंट होगी, डेट आई नो, बट वर्किंग तो सेम है, लाइक दे टेक अ प्रॉम्प्ट एंड दे जनरेट अ रिस्पॉन्स ऑन दैट। सो दीज थ्री आर इंस्टेंसेस एंड दिस मॉडल इज अ ब्लूप्रिंट कि सबकी वर्किंग सेम होगी, सब दिखेंगे ऐसे, अंडरलाइन टेक्नोलॉजी सेम होगी। नॉट वेरिएबल्स, या वेरिएबल्स ऑल्सो, बट अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के वे में देखें तो दूज आर इंस्टेंसेस, ओके। तो अब जो है मतलब मेरा चैट जीपीटी भी एक प्रॉम्प्ट ले सकता है एंड सिमिलरली क्लॉड भी एक प्रॉम्प्ट ले सकता है, क्लॉड डॉट गेट प्रॉम्प्ट, ओके। व्हाई आई एम यूजिंग लाइक चैट जीपीटी डॉट गेट प्रॉम्प्ट, मैं डायरेक्ट गेट प्रॉम्प्ट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मेरा गेट प्रॉम्प्ट जो है वो मॉडल के अंदर है अब, ठीक है। एंड दैट मॉडल मतलब इस मॉडल के अंदर है, तो या तो अगर मैं चैट जीपीटी डॉट गेट प्रॉम्प्ट करूंगा ना तो मेरा चैट जीपीटी वाला मॉडल यूज होगा, अगर मैं क्लॉड डॉट गेट प्रॉम्प्ट करूंगा तो मेरा क्लॉड वाला मॉडल यूज होगा, ओके। एंड अगर मैं जेमिनाई वाला मॉडल यूज करूंगा, जेमिनाई डॉट गेट प्रॉम्प्ट, तो जेमिनाई वाला मेरा मॉडल यूज होगा, ठीक है। इज इट अंडरस्टूड नाउ? इतना क्लियर है? बाकी सबको क्लियर है? ऑल राइट, Sir, I have a doubt. यस। Sir, if we put this in that IIT Madras one, we will have, sir, it will show blocks and addresses. आई एम सॉरी, क्या कह रहे हो आप, लाइक ब्लॉग्स एंड एड्रेसेस? In our website portal, we will have one tool, na, sir. यस यस यस, So how instance will be shown in that? ओके, यस। उसमें ऑब्जेक्ट करके कुछ ऐसा शो हो रहा होगा, इफ आई लाइक ट्राई टू प्रिंट इट चैट जीपीटी
अगर मैं ऐसे करूँ तो ओके डजंट मैटर, ऐसा कुछ हो रहा होगा शो दिस हाईलाइटेड पार्ट, है ना, कुछ ऐसा करके लाइक ऑब्जेक्ट करके ऐड समथिंग ऐसा कुछ शो हो रहा होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर वहाँ कुछ और डिफरेंट वे में शो हो रहा है देन दैट इज लाइक स्पेसिफिक टू दैट जो सॉफ्टवेयर दे आर यूजिंग, आई डोंट नो एग्जैक्टली, ठीक है। तो बट नॉर्मली लाइक आप उसको अभी मत देखो फिलहाल के लिए, आई विल क्लियर एवरीथिंग ऑफ इट, जस्ट बी विद मी फॉर फ्यू मिनट्स। ये थोड़ा यू कैन से मीडियम लेवल टॉपिक है फॉर इन प्रोग्रामिंग, बट दिस इज़ वेरी यूजफुल, ओके, वेरी यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन फैक्ट। जावा जब आप करोगे, जावा इज़ कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑल राइट, तो आपको उन सब पे बहुत लाइक ज़रूरत पड़ सकती है। And yes, Suresh Babu, you are right. In the blueprint of human, we are instances. Okay, that is like correct statement you have given. कि हम सारे like humans हैं, हम सब एक ही चीज़ करते हैं, like we do breathe, we walk, we go to school, college, job, and other things. Okay, so and we are instances, or we can also say object. Okay, तो ये इतना क्लियर है सबको, लाइक दिस मच जितना भी हमने किया, बहुत बेसिक सा कि वट आर ब्लू प्रिंट, वट इज लाइक एवरीथिंग, लाइक वट इज चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनी। अब मुझे ओके मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, क्लॉड क्या है? इज दिस अ ब्लू प्रिंट और इज दिस अ इंस्टेंस? यस, इंस्टेंस इज Instance. ऑब्जेक्ट, राइट, एंड ओके ठीक है। अभी ना मैं थोड़ा सा एक कोड लिख रहा हूँ, डोंट लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड द कोड, बस अभी देखना कि वट आई एम डूइंग। So what I am doing is init self model, self dot model equals model। आपको सब समझ में आएगा, थोड़ा सा जस्ट गिव मी अ टाइम, राइट, self dot model taking from that is it। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चैट जीपीटी पास कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ क्लॉड, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ जेमिनाई। ओके, अभी आपको अब थोड़ा और समझ में आएगा धीरे धीरे। ओके, नाउ सी, ये इनिट क्या है? जब भी हमें कुछ क्लास के अंदर पास करना होता है ना, तो क्लास के अंदर पास करने के लिए वी क्रिएट दिस अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेथड। ओके, एंड यहाँ पे जो फर्स्ट सेल्फ है ना, सेल्फ सिंपली रिप्रेजेंट द इंस्टेंस। तो यहाँ पे जो सेल्फ है, ये सेल्फ फॉर दिस चैट जीपीटी इज दिस। ओके, अगर मैं मॉडल ऐसे करके कर रहा हूँ कॉल, तो इसके लिए चैट जीपीटी इज द सेल्फ, एंड फॉर द लाइन नंबर 52 क्लॉड इज द सेल्फ, फॉर लाइन नंबर 53 जेमिना इज द सेल्फ। सिमिलरली गेट प्रॉम्प्ट के लिए भी, ठीक है। अभी व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम नेमिंग द मॉडल्स। अभी इफ आई रन दिस, व्हाट डू यू गाइस थिंक आउटपुट क्या होगा? थोड़ा सा कुछ भी लाइक वेरिएबल्स को देख के कैन यू नेम? लाइन नंबर 44, ओके, क्या प्रिंट होगा? लाइक ओके, मैं थोड़े ऑप्शंस भी दे देता हूँ। ए, Chat नथिंग, GPT is taking prompt. यस, चैट जीपीटी इज टेकिंग फ्रॉम, व्हाई, लाइक व्हाई दिस? ओके, व्हाई चैट जीपीटी इज टेकिंग प्रॉम्प्ट इफ आई रन दिस? क्यों? क्योंकि आई एम कॉलिंग द गेट प्रॉम्प्ट फंक्शन। अभी फंक्शन लो, ठीक है, अभी डोंट कंसिडर मेथड, आई क्लियर द अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट। ओके, so yes, line number 51 is the reason chat gpt पे I am using get prompt function, ठीक है। if I do gemini dot get prompt, अब क्या प्रिंट होगा? if I do gemini dot get prompt, gemini is taking prompt, ठीक है। if I run this, similarly if I copy this for others, यहाँ पे I write chat gpt, chat gpt, gemini, and then claude,
तो सबसे पहले 3 lines will be printed. First is ChatGPT is taking prompt, Gemini is taking prompt, Claude is taking prompt. Is this understood? अब मैंने तीनों को नेम दे दिया. ऑल थ्री आर इंडिविजुअल एंटिटीज. ओके, तीनों सेपरेट है बट तीनों की वर्किंग सेम है. ओके, ये सबको क्लियर है? अगर सबको क्लियर है, यू गाइस कैन गिव अ थम्स अप सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड. यस. ओके, नाउ सी, जब भी हमें मॉडल के अंदर लाइक ये जो मॉडल है, और लेट्स से अगर मैं थोड़ा सा why it is called so object oriented programming. So this is a whole class. Okay, and this instance chat gpt, claude, gemini, these are objects. Okay, इनको इंस्टेंस भी कह लो, ऑब्जेक्ट्स भी कह लो. एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मीन्स मतलब जो गेट प्रॉम्प्ट है, अभी यू सी ना, अगर मैं चैट जीपीटी डॉट गेट प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ तो ये सिर्फ चैट जीपीटी यूज कर रहा है. इट इज नॉट यूजिंग क्लोड और जेमिनाई. तीनों इंडिपेंडेंट है. ओके, तो ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग से वर्क कर रहा है. मतलब कैन यू गाइस अंडरस्टैंड कि सेम कोड मेरा 3 अलग अलग चीज़ों के लिए वर्क कर रहा है, लाइक क्लॉड के लिए भी और जेमिनाई के लिए भी. इज दिस अंडरस्टूड टू एवरीबडी? लाइक व्हाई इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. मैं सेम कोड यूज कर रहा हूँ फॉर 3 थिंग्स. अभी जो पहले मैं कर रहा था, लाइक मैंने कॉपी मेन बनाई थी फॉर द मैसेज. आई विल टेक यू गाइस इनटू दैट एज वेल, बट अभी लेट्स टेक दिस एग्जांपल. ये सबको क्लियर है कि these are like different objects and Claude is separate from the chat gpt and Gemini से भी. ठीक है, तीनों पे मैं डिफरेंट चीज़ें यूज कर रहा हूँ. सो दिस इज द मेन पर्पस. नाउ मॉडल पे लाइक जब भी एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है ना, तो हम वो क्लास का नाम लिखते हैं. क्लास का नाम लिखने के बाद वी कॉल दैट क्लास. ओके, वी सिंपली कॉल दैट क्लास एंड वी गेट एन ऑब्जेक्ट इन रिटर्न. ठीक है, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन जाता है वेन एवर वी कॉल अ क्लास. ओके, अभी वो क्लास कॉल करते टाइम ना वी हैव लाइक फंक्शनैलिटी कि हम उसको कुछ लाइक उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बना पाए. तो इट मीन्स मैं अगर चैट जीपीटी मॉडल बना रहा हूँ, आई वांट कि उसको हर कोई चैट जीपीटी नेम से बुलाए या यूज करे. ठीक है, सो आई एम पासिंग प्रॉपर्टी ऑफ दिस विच इज मॉडल, और इफ आई इनफैक्ट राइट मॉडल नेम तो उससे थोड़ा और अंडरस्टूड होगा कि इसका नाम क्या है मॉडल का. सो दिस इज द मॉडल नेम विच आई एम पासिंग हियर चैट जीपीटी. अब व्हाई व्हाट इज सेल्फ हियर? सेल्फ इज द, सी जब भी हम ये गेट प्रॉम्प्ट कॉल करते हैं ना, तो गेट प्रॉम्प्ट इज टेकिंग वन पैरामीटर सेल्फ. सेल्फ बेसिकली ये जो चैट जीपीटी डॉट लिखा है ना, इट इज टेकिंग दिस सेल्फ पैरामीटर हियर. ओके, अभी मैं आपको इसका थोड़ा और बताता हूँ. इफ आई लाइक क्रिएट अ मॉडल नेम्ड लेट्स से परम. ठीक है, एंड इफ आई कॉल गेट प्रॉम्प्ट. अब मुझे इसका पहले बताओ क्या आउटपुट होगा लाइन नंबर 56 पर. व्हाट इज लाइन नंबर? आई विल टेल यू, डोंट वरी, मैं आपको सारा बताऊंगा. व्हाट दिस इज लाइक डूइंग, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस? परम इज टेकिंग प्रॉम्प्ट, राइट? इफ आई रन दिस, परम इज टेकिंग प्रॉम्प्ट. नाउ ठीक है, अभी मैंने सिंपली इतना कर दिया, मॉडल डॉट गेट प्रॉम्प्ट. अभी मैं ना मॉडल को कॉल नहीं कर रहा, पहले मैंने मॉडल को कॉल किया था. मैं ठीक है, मैं इन दोनों को ना सेपरेट करता हूँ. मैं एक और बनाता हूँ, मॉडल डॉट गेट प्रॉम्प्ट. यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ चैट जीपीटी. ठीक है, यहाँ पे आई हैव पास चैट जीपीटी एंड नाउ इफ आई रन दिस, कैन यू सी चैट जीपीटी इज टेकिंग प्रॉम्प्ट. ऊपर तो गेट प्रॉम्प्ट में आई हैव नॉट पास्ड एनीथिंग, still it is working. Like line number 54 and line number 56 58 both are giving me same output, है ना? How? This is because of this self parameter. तो ये self जो है it represents the instance. So मैंने यहाँ पे chat gpt पास करा ना ये वाला, तो ये chat gpt को कंसिडर करा, तो अपने आप इसने इसका मॉडल नंबर फेच कर लिया chat gpt. अगर मैं यहाँ पे पास करता हूँ Gemini, तो ये आ जाएगा Gemini is taking prompt. Now are you guys able to understand like what is the use of self? Self समझ में आ रहा है? Like what is self here? Self is basically taking the object, Yes, object, right? taking the object and relating that object with the particular function.
एंड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो भी हमारे फंक्शन होते हैं क्लास में, वी कॉल देम एज अ मेथड, वो ऑब्जेक्ट का मेथड हो गया. सो दैट्स व्हाई इफ आई लाइक सिंपली create a square function which returns a square of a number, if I hover it you will see ये function लिखा आ रहा है, ठीक है. but if I hover it, this get prompt, you will see यहाँ पे method लिखा आ रहा है. these are namings, इसका कोई वो नहीं है like different कुछ understanding, ठीक है. these are some namings की method है, ये एक method basically do some work. सो मेथड का मेन यही पर्पस होता है, डू सम वर्क. सो फंक्शंस को अगर हम क्लास के अंदर लिखते हैं, वी कॉल देम एज अ मेथड्स. ओके, नाउ यस, मेथड इज स्पेसिफिक टू सम सर्टेन क्लास. इतना क्लियर है सबको, व्हाट आर मेथड्स? अभी जैसे मैंने यहाँ पे गेट प्रॉम्प्ट किया था ना, चैट जीपीटी डॉट गेट प्रॉम्प्ट, तो ये क्या कर रहा था, ये चैट जीपीटी को एज अ फर्स्ट पैरामीटर पास कर रहा था अपने आप ही, मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा. सेम थिंग आई एम डूइंग हियर, बट यहाँ पे मैं मॉडल क्लास का यूज करके कर रहा हूँ. आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी इंस्टेंस, यहाँ पे मैं इंस्टेंस बना रहा हूँ, ठीक है. यहाँ पे आई हैव नॉट क्रिएटेड एनी इंस्टेंस, आई एम जस्ट कॉलिंग द गेट प्रॉम्प्ट, बट आई एम पासिंग द ऑब्जेक्ट. ओके, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ओवरवेलमिंग सा, डोंट वरी, आप एक बार दोबारा देखोगे ना आपको क्लियर हो जाएगा. आई होप आई हैव लाइक क्लियर्ड इट इन अ वेरी बेसिक मैनर, क्योंकि पहले थोड़ा सा मेस्ड हो रहा था यहाँ पे मैसेज का. लेट्स नॉट गो इनटू दैट वन. अभी इतना करते हैं. इतना सबको क्लियर है अभी तक हमने तक जितना देखा? अभी इस मैसेज पे थोड़ा सा आते हैं. ये मैसेज बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर रहा था, है ना, कि मैं क्या कर रहा हूँ, ग्लोबल मैसेज यूज़ कर रहा हूँ, दिस ग्लोबल मैसेज, मैसेज इक्वल्स टू मैसेज. यहाँ पे व्हाट आई हैव डन हियर इज आई हैव रिटन सेल्फ डॉट मॉडल, एंड वो मॉडल नेम मैंने यहाँ पे सेल्फ डॉट मॉडल पे असाइन कर दिया. ये मेरा एक बन जाता है इंस्टेंस वेरिएबल और अ प्रॉपर्टी ऑफ दैट क्लास. ओके, ये क्लास नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट. जितने भी वेरिएबल्स बनाते हैं ना हम inside a class, inside a method of a class or inside a class, we call them as a properties. okay, properties और attributes. so model यहाँ पे property या attribute है, ठीक है. so like अगर मुझे, जैसे मैंने यहाँ पे मॉडल नेम पास करा ना चैट जीपीटी, तो ये चैट जीपीटी इसकी जगह आके ये सेल्फ डॉट मॉडल में जाके असाइन हो जा रहा है. एंड सेल्फ डॉट मॉडल इज अ एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी, आप दोनों में से कुछ भी बोल दो, बोथ आर फाइन. नाउ पता है क्या इसका फायदा क्या है ये वेरिएबल का? जैसे मैं यहाँ पे मैं यूज कर रहा था ना ये ग्लोबल मैसेज, सेंडिंग मैसेज, मैसेज इक्वल्स टू न्यू मैसेज, डिलीट करने के लिए भी, एडिट करने के लिए भी. यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ लिखना नहीं पड़ रहा, ग्लोबल एंड ऑल. यहाँ पे बस मुझे सेल्फ डॉट मॉडल लिखना पड़ रहा है, बिकॉज यही मैंने इसको नेम दिया था. सेल्फ डॉट रिप्रेजेंट कि मैं इस वाले इंस्टेंस का मॉडल यूज कर रहा हूँ, एंड यहीं पे वो सेल्फ डॉट मॉडल. ओके, now is it understood कि why I am using self dot model, like what does line number 42 do does? is it clear or not? आप लोग बता सकते हो अगर क्लियर नहीं है. we can like I'll explain you again. okay, I hope सबको क्लियर है. see this is very important. अभी मे बी आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या है, भले ही अभी एंड टर्म में इसके क्वेश्चंस कम आए, बट इन फ्यूचर इन प्रोग्रामिंग डजेंट मैटर, आप डेटा साइंस वाला पहले करो या प्रोग्रामिंग वाला पहले करो, डिप्लोमा, दोनों में यू विल एनकाउंटर ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, इंस्टेंस, एवरीथिंग. ओके, एंड इन मैड वन तो आपको खुद से बनाने भी पड़ेंगे बहुत सारे. ये तो एक बहुत छोटा सा है, बहुत बड़े बड़े क्लासेस वी क्रिएट एवरीबडी. ओके, सो यस, अब बात क्या है, पाइथन इज लाइक एन ऑलराउंडर लैंग्वेज. पाइथन में हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं. जावा में हम सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं. जावा में वी डिफाइन क्लास एंड ऑल, हम क्लासेस के साथ ही उसमें करते हैं. सेल्फ इज मॉडल नेम इज इंस्टेंस, नो नो नो, मॉडल नेम एक पैरामीटर है इसका, इनिट मेथड का. इनिट मेथड बेसिकली क्या है, इट इज़ लाइक जब भी मैं मॉडल को कॉल करता हूँ ना, तो ये इनिट मेथड कॉल हो जाता है अपने आप, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, ये अपने आप इनिट मेथड कॉल हो जाता है. एंड इन
अगर मुझे मॉडल में कुछ पैरामीटर पास करने हैं, मॉडल को कुछ वेरिएबल्स वगैरह देने हैं बनाते टाइम इंस्टेंस, यस दिस इज अ कंस्ट्रक्टर, ओके, फॉर्मल नेम इज कंस्ट्रक्टर, इट ऑटोमेटिकली कॉल्स, एंड जो भी मुझे वेरिएबल्स, जो भी मुझे वैल्यूज देनी है वो मैं डायरेक्टली मॉडल लाइक कॉल करते टाइम देनी है वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, ठीक है। नाउ इज दिस अंडरस्टूड? जो भी पूरा कोड है अभी तक का ये सारा, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? एक बारी लाइक सारे यू गाइस कैन से यस, नो और थम्स अप, थम्स डाउन, whatever you guys feel, ओके। काफ़ी सीरियसली हो गया बट आई होप आपको अब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही होगी। लाइक आई एम सेपरेटिंग द मॉडल्स, अगर मैं रफली मॉडल करता, यस अपने आप कॉल हो जाता है कंस्ट्रक्टर जब भी हम मॉडल को ऐसे कॉल करते हैं, व्हेनेवर आई एम लाइक डूइंग दिस मॉडल, एंड जैसे मैंने ये करा ना, इट इज़ कॉलिंग दिस इनिट मेथड, ओके। मुझे ऐसे नहीं लिखना पड़ रहा कि मॉडल डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप से कर रहा है कॉल, इट इज़ अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। हर एक लैंग्वेज में डिफरेंट वे में कंस्ट्रक्टर डिफाइन होता है, जावा में सेम नेम से कंस्ट्रक्टर डिफाइन होता है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन जावा? मुझे नहीं लगता किसी ने करी होगी, शायद मे बी किसी ने करी हो, नॉट येट, ओके, किसी ने भी नहीं करी जावा, सो डोंट वरी लिटल। सो ध्रुव ज्योतिदास, आपको पता होगा कि वहाँ इन जावा एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट? तो उसमें लाइक कंस्ट्रक्टर भी सेम नेम पे होता है, सेम फॉर सुरेश एज वेल, अगर आप लाइक थोड़ा सा तो आपको पता होगा। एंड उसमें एक मेन मेथड भी होता है, वेल डैट मेन इज डिफरेंट, वो हमारा इसमें नहीं होता। नाउ इतना तो सबको क्लियर होगा, यस यस, डोंट गो इनटू दैट, इग्नोर दैट, ओके, एज ऑफ नाउ, ओके। अभी इतना तो हो गया बहुत बेसिक सा, लेट्स लाइक मूव फर्दर। अब इसका यूज़ केस भी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मुझे चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनी के लिए अलग अलग कोड कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ रहा, सेम कोड ही मेरा रीयूज हो रहा है फॉर ऑल थ्री, है ना। अभी मैं यहाँ पे एक और चीज़ पास कर देता हूँ, प्रॉम्प्ट। भाई प्रॉम्प्ट ले रहा है तो प्रॉम्प्ट जो ले रहा है वो भी तो होगा ना, एंड प्रॉम्प्ट इज प्रॉम्प्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट पास कर दिया एंड ये मेरा हो गया। अभी इफ आई डू चैट जीपीटी डॉट गेट प्रॉम्प्ट, it will simply take a prompt, let's say write me an email, okay। ये हम ऐसे ही प्रॉम्प्ट लिखते हैं जो हम चैट जीपीटी, जेमिनाई पे लिखते हैं, हम बस ऐसे ही लिखते हैं, राइट? कोई भी एक इनपुट उस पे, जैसे यहाँ पे ये इनपुट बॉक्स है, हम यहाँ पे लिखते हैं कि राइट मी एन ईमेल, गिव मी एन ईमेल और समथिंग लाइक दैट, और कुछ भी ऐसा लिखना हो, है ना। तो अभी आई एम डूइंग दिस, इफ आई रन दिस you will see like chat gpt is taking prompt and prompt is write me an email, और मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ थोड़ा सा और लाइक ब्यूटीफुल वे में। prompt is, मैं इसको ना कोटेशंस में डाल देता हूँ जिससे थोड़ा और हमें क्लियरली विजिबल हो जाए। if I run this now you will see ChatGPT is taking prompt. Why it is taking prompt? Because I have called ChatGPT.getPrompt and मैंने उसके अंदर एक मैसेज प्रॉम्प्ट पास किया which is this prompt is write me an email। ये क्लियर है सबको? So these are the arguments of the method. First argument is the instance itself. First के अलावा जितने भी हम डालते हैं those are treated as normal arguments, normal parameters, जो भी हमने फंक्शन में हम नॉर्मली करते हैं, लाइक डेफ स्क्वायर एक्स, एक्स इज द लाइक ओके नॉट आर्ग्यूमेंट, एक्स इज द पैरामीटर, राइट, इन दिस डेफ फंक्शन। सिमिलरली यहाँ पे प्रॉम्प्ट इज द पैरामीटर, सेल्फ इज ऑल्सो द पैरामीटर, बट ये सेल्फ को अपने आप ट्रीट कर लेते हैं, हमें नहीं कुछ करना पड़ता, ओके। ये क्लियर है सबको हाउ इट इज वर्किंग? ओके, बाकी सबको क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है यू गाइस कैन लाइक से आई कैन एक्सप्लेन, ऑलराइट। नाउ जनरेट रिस्पॉन्स, अब थोड़ा सा जनरेट रिस्पॉन्स पे आते हैं। सी जनरेट रिस्पॉन्स पे क्या होगा, जो भी हमने प्रॉम्प्ट लिया है ना, लेट्स से
ओके, मैं ना एक रिस्पॉन्स कर लेता हूँ, and this response पे what I will do is I'll simply like um, email is like something like this to subject and all something, जो भी मेरा पूरा email है, ठीक है, ये मेरा रिस्पॉन्स है, ये मेरा ईमेल के रिलेटेड रिस्पॉन्स है. बट हाउ विल आई लाइक वेरीफाई? ओके, अगर मुझे जनरेट रिस्पॉन्स को लाइक मुझे प्रॉम्प्ट वेरिएबल यूज करना है इन द जनरेट रिस्पॉन्स, हाउ कैन आई यूज दैट? लाइक अभी इफ आई नॉर्मली कॉल chat gpt dot generate response, if I run this you will see यहाँ पे तो ओके कुछ नहीं आ रहा because I have to getting an error क्योंकि I have to pass self. बट अभी if I run this हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आ रहा क्योंकि चैट जीपीटी डॉट जनरेट रिस्पॉन्स पे कुछ नहीं है. अब मुझे यहाँ पे अगर प्रॉम्प्ट प्रिंट करना है जनरेट रिस्पॉन्स के अंदर, तो हाउ कैन आई यूज द प्रॉम्प्ट वेरिएबल इन दिस मेथड? कोई बता सकता है? ऊपर से इफ यू गाइस सी फ्रॉम हियर सेम वे है. एनीवन? थोड़ा सा भी जो भी आपको गेस लाइक करना है. Self dot prompt or something. ओके, सेल्फ डॉट प्रॉम्प्ट एंड आई Self कैन dot get prompt. Sorry. ओके सेल्फ डॉट गेट प्रॉम्प्ट. ओके, सेल्फ डॉट गेट प्रॉम्प्ट, ठीक है. बट यहाँ पे तो मुझे एक प्रॉम्प्ट पास करना पड़ रहा है ना, मुझे तो ये वाला प्रॉम्प्ट चाहिए जो भी मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ. हाउ कैन आई डू सो? I can create one So the more instance argument variable. must have for generate response, there must be an argument. There must be an argument, but let's say मैंने prompt already pass कर दिया है, ठीक है, तो मुझे और कोई argument लेने की जरूरत नहीं है. I And just you have have to to set generate it the in a response. local, set it in a variable, class variable, Yes, object. I'm creating an instance variable self dot prompt equals to prompt. Okay, अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ यहाँ पे self dot prompt, and now if I run this you will see prompt ये था मेरा write me an email. लाइक मैंने यहाँ पास किया गेट प्रॉम्प्ट में जो मेरा प्रॉम्प्ट था, ठीक है, बट आई एम यूजिंग इट हेयर. ओके, अब मैं यहाँ से कुछ भी लाइक मान लो मैंने एपीआई कॉल की, कुछ भी की, एंड मैंने प्रॉम्प्ट के बेस पे लाइक रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया. लाइक लेट्स से रिस्पॉन्स इक्वल्स गेट रिस्पॉन्स एंड आई हैव पास सेल्फ डॉट प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट डॉट समथिंग. नो, यू कांट डू लाइक दैट, ऐसा कुछ है नहीं वे. तो मान लो एक मेरा ना गेट रिस्पॉन्स करके कोई एक मेथड है कहीं पे, ठीक है, जो चैट जीपीटी या इन सब की एपीआई कॉल कर रहा है. ओके, एपीआई कॉल हो रही है कुछ समथिंग लाइक दैट एंड इट इज रिटर्निंग सम रिस्पॉन्स समथिंग लाइक दैट. लेट्स से मैं यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए ईमेल टेम्पलेट समथिंग मैं ऐसे करके ना एक टेम्पलेट रिटर्न कर दे रहा हूँ अभी के लिए. तो मेरे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है एंड इफ आई प्रिंट द रिस्पॉन्स हियर I'll get the okay, you get responses checking. Okay, yeah, अभी के लिए बस मैं इतना सही कर दे रहा हूँ. So what I am doing here is like I just want to show you guys कि how can I use self dot prompt here. तो यहाँ पे मैंने self dot prompt यूज़ किया. मान लो इससे ना ये रिस्पॉन्स मेरे पास आ गया, मैंने कुछ एपीआई कॉल करी यहाँ पे इस मेथड पे गेट रिस्पॉन्स में, एंड मेरे पास एक रिस्पॉन्स आ गया, वो रिस्पॉन्स को मैं प्रिंट कर रहा हूँ विच इज़ दिस ईमेल टेम्पलेट जो यहाँ पे था, ठीक है. अभी ओके, इफ आई रन दिस व्हाट विल बी द आउटपुट? लाइक क्या होगा आउटपुट? विल आई गेट ईमेल टेम्पलेट, विल आई गेट एनी एरर, और विल आई गेट नन, और विल आई गेट बोथ ईमेल टेम्पलेट एंड नन? ओके, काफ़ी शांति है. ये मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है? Is this returning something? This method generate response. Okay, what it is returning? No, I am asking return.
इज दिस रिटर्निंग समथिंग? नो। तो मेरे पास इसका तो नन हो जाएगा, राइट? ये तो No, it is not. आई वांट टू क्लियर दिस वन थिंग, ठीक है। ये तो बस एक बेसिक सा हो गया। आई जस्ट वांट टू क्लियर दिस बेसिक थिंग। ये कुछ वो नहीं कर रहा अभी। एक छोटा सा लाइक ओके, मैं ये करता हूँ इसको अभी फ़िलहाल के लिए। आई कमेंट इट आउट। एक छोटा सा ना आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्लास कार, मैं एक कार का ब्लूप्रिंट बना रहा हूँ। कार पे क्या होता है, एक मॉडल नेम होता है और या मॉडल नेम डेट्स इट। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंजन एंड ऑल, मैं उन सब पे नहीं जा रहा, ठीक है। मॉडल नेम नाउ लेट्स स्टार्ट प्रिंट एफ टेड। self dot model name is job. Okay, what is car? Is this instance, is this object, is this blueprint? Is this instance or blueprint? Blueprint. Sorry, Car is a class, right? car is a class, it is a blueprint, right? Blueprint. Yeah. Yes. Now I'll create several instances. Audi car and I'll pass a name. I'm just passing the name, that's it. मुझे और कुछ पास अभी नहीं करना फिलहाल। Audi, BMW car and then Tesla, let's say. What are these three? Audi, BMW and Tesla. Objects. Objects. These are objects or instance, right? Both are same thing. Abhi, okay, I'm passing an object here. Now बहुत basic सी चीज़। okay, let's start with the very basic. What does, okay, अभी अगर मैं इतना करता हूँ, what does this model name is storing for this object? मॉडल नेम में क्या वैल्यू आ रही है फॉर दिस ऑब्जेक्ट? ऑडी, राइट, है ना? एंड दिस इज ओके, दिस बहुत बेसिक सी चीज़ थी। and this model name I can use it anywhere throughout the class because it is an instance variable. ये इस instance के लिए specific है। now audi dot start, output क्या होगा इसका? what will be the output? Audi started. right, now if I do car or let's say okay, just I'm writing Maruti dot start. Now tell me what will be the output of line number 87? Maruti started. मारुति स्टार्टेड, ठीक है, बहुत बेसिक था। वन लास्ट, कार डॉट स्टार्ट एंड टेस्ला, व्हाट विल बी द आउटपुट? टेस्ला स्टार्टेड। ओके, अभी लाइक आपको बेसिक सारे क्लियर हो गए होंगे। स्टार्ट स्टॉप हम हमारे पास तीनों के लिए, लाइक इफ आई डू टेस्ला डॉट स्टॉप इट विल गिव मी टेस्ला इज स्टॉप्ड, ठीक है। तो आई होप सबको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इज दिस लाइक क्लियर नाउ? डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस एंड ब्लूप्रिंट, what are instance variable and how these methods are working independently, how these three lines are different. Okay, these three lines are a little bit different. Like see, यहाँ पे we are calling start method of Audi instance. Okay, so ये automatically self में Audi pass कर रहा है। Okay, so that is fine, ये अपने आप Audi pass कर रहा है यहाँ।
एंड दिस यहाँ पे मैं एक और इंस्टेंस बना रहा हूँ जस्ट लाइक सिमिलरली, बट मैं यहाँ पे ना जैसे मैंने यहाँ पे इंस्टेंस बना के इसको एक नेम वेरिएबल नेम दे दिया था ऑडी नाम का, बट यहाँ पे मैंने कुछ नेम नहीं दिया, यहाँ पे मैं डायरेक्टली स्टार्ट कॉल कर रहा हूँ, ये भी सेम है, कुछ फर्क नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है. what I am doing here is I am calling car, this car class, and in the car class I am specifically calling start method, but I am passing an instance. मैं यहाँ पे इस लाइक लेट से मैं यहाँ पे टेस्ला पास कर रहा हूँ. अगर मैं टेस्ला की जगह अगर मैं यहाँ पे पास करता हूँ कार एंड लेट से टाटा, नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट. ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया. इफ यू आर एबल टू लाइक थोड़ा सा अगर सी इफ यू सी अबव लाइन ऑफ कोड आपको पता चल जाएगा. टाटा स्टार्टेड, राइट. सो आई होप सबको अब क्लियर हो गया होगा एवरीथिंग अबाउट इट. अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है. क्लास वेरिएबल्स, नाउ देर इज कैन देर नो देर कैन ओनली बी वन इन इट. ओके, कंस्ट्रक्टर एक ही होता है. सो नाउ देर इज वन थिंग called class variables. Class variables are same for all the classes. Okay, so let's say car पे like number of wheels सब में सेम होते हैं, है ना, 4 and all the thing. अभी is electric, मैं यहाँ पे एक ये बनाता हूँ, electric is electric, self dot is electric. Okay, yes, okay. Now default value will be false. मैं यहाँ पे ना एक और फंक्शन बनाता हूँ, def type of car. It will take a self and it will print self dot okay, if self dot is electric, it will print it is electric, else normal. That is it. अभी ओके, सी हम ना इस इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं हर एक इंस्टेंस से. हाउ, आई विल शो यू. प्रिंट ऑडी डॉट, आई विल राइट मॉडल नेम. ओके, इफ आई प्रिंट इट यू विल सी मेरे पास ऑडी आ रहा. इफ आई डू टेस्ला डॉट मॉडल नेम, आई विल गेट टेस्ला. dunder in double underscore and init, dunder init, both are same. Okay, yes, these are namings like double underscore we are using ना, so we call them as a dunder method. बहुत सारे dunder methods होते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाते, अभी बेसिक करते हैं. Is this clear? We can access instance variable. ठीक है, हम एक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं. like tesla dot model name will give us tesla, bmw dot model name will give us bmw. okay, जैसे हम मेथड्स को कॉल कर पा रहे थे स्टार्ट स्टॉप उसको, वैसे इसको. अब टेस्ला इलेक्ट्रिक आ रहा है तो मैं यहाँ पे ना ट्रू पास कर देता हूँ. नाउ ओके, इज दिस क्लियर? लाइक मॉडल नेम, हाउ कैन आई एबल टू एक्सेस इट टू एवरीबडी? इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? ऑल राइट. अभी ओके, एक छोटी सी और चीज़ करते हैं. कार डॉट मॉडल नेम, what will be the output? I'll write options: none, error, Audi or Tesla. What will be the output of this car dot model name? आप सब बताओ, डोंट आस्क क्वेश्चन, टेल द आंसर. क्या होगा? none. ओके, ऑल राइट. इफ आई रन दिस, मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ. किसी ने बताया था एक एरर, एट्रीब्यूट एरर. इफ आई रन दिस you will see attribute error. car has no attribute name like model name. attribute error आ रहा है, error आ रहा है, ठीक है, none नहीं आ रहा. क्यों नहीं आ रहा none? and क्यों error क्यों आ रहा है? because I have like
डिफाइंड दिस वेरिएबल, ये जो मॉडल नेम बना है ना, ये तभी बन रहा है जब ये इनिट मेथड कॉल हो रहा है, मतलब जब ये कार इंस्टेंस बनेगा ना तभी ये मॉडल नेम एक्सेस कर पाएंगे. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इंस्टेंस वेरिएबल. ओके, दिस इज द डिफरेंस. दिस इज लाइक वन थिंग. अभी डिफरेंस भी आपको क्लियर करता हूँ. दिस इज लाइक क्लियर टू एवरीबडी why car dot model name is giving us attribute error, not none or not Tesla or BMW. Everybody, बाकी सबको क्लियर है ना? So I didn't understand why. ओके, जब हम इंस्टेंस बना रहे हैं ना, यहाँ पे वी आर कॉलिंग द कार मॉडल कार क्लास, एंड इस क्लास पे वी आर पासिंग इन द मॉडल नेम. ये इस इनिट मेथड के अंदर ये मॉडल नेम वेरिएबल बन रहा है. ठीक है, तो अभी अगर मैं करता हूँ ना ऑडी डॉट मॉडल नेम, यहाँ पे ऑलरेडी ये इनिट को कॉल कर चुके हैं, तो मॉडल नेम बन चुका है. लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ प्रिंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट इज कॉल्ड विद मॉडल नेम एज मॉडल नेम. ठीक है, इससे आपको थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग होगी. इफ आई रन दिस, आपको बहुत सारे हमें आउटपुट मिलेंगे. सबसे पहले मैंने ऑडी का बनाया था, तो इट इज शोइंग इनिट इज कॉल्ड विद मॉडल नेम एज ऑडी, इनिट इज कॉल्ड विद मॉडल नेम एज BMW एंड फॉर टेस्ला. अब ऑडी का ऑलरेडी लाइक मॉडल नेम बन चुका है हियर सेल्फ डॉट मॉडल नेम, क्योंकि इनिट कॉल हुआ है. ठीक है, सो आई एम गेटिंग हियर ऑडी डॉट मॉडल नेम 19 लाइन का. इतना सबको क्लियर है? दीज 4 लाइन्स ऑफ आउटपुट, इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? ओके, नाउ दिस वन कार. अभी ओके, let me comment all of this out. Now if I run this, I'm not getting any output. Can you see? यहाँ पे तो मैं अपना कोड रन कर रहा हूँ एंड यहाँ पे I'm just getting the error for line number 95, क्योंकि मॉडल नेम अभी तक बना ही नहीं, क्योंकि अभी इनिट कॉल ही नहीं हुआ. कैन यू गाइज अंडरस्टैंड दिस? अभी तक इंस्टेंस ही नहीं बना. इंस्टेंस तभी बनता है जब इनिट मेथड कॉल होता है. वेन एवर वी call the class, we create a instance. We are trying to access a instance variable जो अभी तक बना ही नहीं, क्योंकि इंस्टेंस क्रिएट ही नहीं हुआ. yes 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 now is it understood? क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम भी सेम. वेल ओवरराइड हो जाएगा फिर. ठीक है, ओवरराइड हो जाएगा, सो डोंट यूज सेम. ओके प्रीति, इज इट अंडरस्टूड? बाकी सबको क्लियर है? Is this car dot model name, why this is giving us attribute error? All right, see, this is an instance variable. ये तभी बनेगा जब init method call होगा, and init method call means we are creating an instance. यहाँ पे मैंने कोई instance नहीं बनाया, I've just written the car class. Okay, अभी now this number of wheels, this is a class variable. ये हमारा तभी बन जाता है जैसे हम क्लास बनाते हैं. ठीक है, सो आई कैन एक्सेस दिस प्रिंट कार डॉट नंबर ऑफ व्हील्स. इफ आई रन दिस यू विल सी 4 आ रहा है मेरे पास. ओके, doesn't matter if I create these as well, I'm getting like 4 here. Okay, same for others as well. Like if I do print Audi dot number of wheels, Tesla dot number of wheels. So okay, मैं इसको ना कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए. हाँ, तो यू विल सी तीनों का 4 आ रहा है इन तीनों लाइंस का. कार के लिए तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ठीक है ये कार के साथ है, बट फॉर दीज ऑल्सो ऑडी एंड टेस्ला इट इज़ अ वैलिड वेरिएबल, इट इज़ अ क्लास वेरिएबल. ठीक है, ये सबके लिए सेम होता है. ऑल राइट, दिस इज सेम फॉर एवरीबडी, दिस इज नॉट डिफरेंट. सो ये डिफरेंस होता है इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल में. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ओके, अब ना मैं एक और मेथड बनाता हूँ फिलहाल, dev properties, and here I'll just print model name is self dot model name, print is electric question mark self dot is electric.
Now you guys tell me, how can I access that number of wheels? Well, 4 है of course, constant है, but still I want to access this number of wheels. How can I access this? कोई मुझे बता सकता है, how can I access this? Car dot number of wheels? No. Okay, car dot. See, car dot लिखने की जरूरत नहीं. I can, okay, बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं. I can simply write this variable directly. Okay, अभी लिखेंगे तो of course it is showing not defined, क्योंकि हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते. तो हम जो है सेल्फ लिखेंगे. I'll show you कार एंड सेल्फ में क्या डिफरेंस है. मैं ऐसे भी कर लेता हूँ, नंबर ऑफ व्हील्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कार, ठीक है. तो जिससे क्लियर हो जाएगा. कार एंड सेल्फ डॉट कार डॉट, ओके, कार डॉट नंबर ऑफ व्हील्स. मैंने ये दोनों लिख दिया, कार भी और सेल्फ भी. ओके, सो दोनों का क्लियर होगा. नाउ मैं इन सबको बंद करता हूँ. आई विल सिंपली कॉल ऑडी डॉट प्रॉपर्टीज एंड टेस्ला डॉट प्रॉपर्टीज. अभी इन सब के आउटपुट तो यू गाइस नो, लाइक for this line number 106 I'll get this model number is Audi, is electric false, number of wheels for the car इसका भी 4 आ रहा है, number of wheels for this also इसका भी 4 आ रहा है. टेस्ला के लिए this line number 107 you are getting model name is Tesla, is electric true, number of wheels 4, number of wheels 4, दोनों पे कार एंड सेल्फ. इतना क्लियर है सबको? आई एम एक्सेसिंग, लाइक पर्पस ये है इसके पीछे, ट्राई टू लाइक शो यू हाउ कैन वी एक्सेस दिस क्लास वेरिएबल इन अ मेथड. ओके, अभी थोड़ी सी और चेंजेस करते हैं. ओके, इससे पहले अब आप लोग मुझे बताओगे व्हाट विल बी द आउटपुट. लाइक ओके, आई विल राइट मॉडल नेम इज नन, is electric none, या एरर, और ऐसे करके बाकी सारी लाइंस भी, मतलब ओल्ड 4 लाइंस या एरर ए और बी. दिस इज ए, दिस इज बी. what will be the output of car dot properties? Error. Error, yes, it will be error. And why error, कोई बता सकता है? Because instance is not created. Instance is not created, that is fine, but error किस लिए, like error is because of this self accessing while accessing the self dot model name. If I run this, okay, yeah, sorry, car dot properties is fine, this is here. यहाँ पे we have this self here. अगर मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, well मैं उसको भी एक्सेस नहीं कर पाऊँगा. ओके, let it be here and I'll pass ऑडी. ओके, मैं ऑडी पास करता हूँ, ये तो सबको पता होगा, ऑडी के लिए आ जाएगा. ओके, मैं थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल लेता हूँ. यहाँ पे तो इंस्टेंस पास, लाइक इंस्टेंस कोई क्रिएट नहीं हुआ, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द एरर. नाउ एक छोटी सी और चीज़ करते हैं. सी, मान लो, ठीक है, मैं बहुत ही एम्बिगुअस, बहुत ही वेग होगा, बट फिलहाल के लिए मान लो जो टेस्ला का जो नंबर ऑफ व्हील्स है ना, लेट्स सेट इट टू 6, ठीक है. डोंट लाव, जस्ट लाइक मान लेते हैं फिलहाल के लिए. नाउ ओके, अभी आई डू टेस्ला डॉट, ओके टेस्ला नहीं, अभी मैं इसका करता हूँ. टेस्ला के मैंने नंबर ऑफ व्हील्स 6 कर दिया. आई डू ऑडी डॉट नंबर ऑफ व्हील्स, sorry, not number of wheels, I'll do audi dot properties. इन दोनों पे क्या आएगा, 4 6 या 6 4 या 6 6 या फिर क्या. I'll write options 4 6 B, 6 6 C, 4 4 या फिर D, 6 4. All right, option will be 4 4. Okay, ओके, इसका तो 6,
ओके, इफ आई रन दिस, यहाँ पे तो 4 आ रहा है, नंबर ऑफ व्हील्स कार डॉट नंबर ऑफ व्हील्स भी है एंड नंबर ऑफ व्हील्स नॉर्मल सेल्फ डॉट नंबर ऑफ व्हील्स भी, क्योंकि मैंने टेस्ला के नंबर ऑफ व्हील्स चेंज करे हैं, ठीक है। आई हैव चेंज द वैल्यू ऑफ टेस्ला इंस्टेंस। तो कैन यू सी, हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं बहुत इजीली। मैं टेस्ला में कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, वो बाकी दोनों पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, ऑल दीज आर इंडिपेंडेंट। इज दिस अंडरस्टूड कि मैं टेस्ला पे कर रहा हूँ तो ये ऑडी पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ओके, ये सबको क्लियर हो गया। अभी सी, ये तो ऑडी का हो गया, अभी टेस्ला का देखते हैं। इसका देखते हैं, हाउ मैनी कैन, टेस्ला पे मैंने 6 कर दिया ना। नाउ टेल मी क्या होगा नंबर ऑफ व्हील्स इन दोनों के, लाइक कार डॉट नंबर ऑफ व्हील्स एंड सेल्फ डॉट नंबर ऑफ व्हील्स पे क्या आएगा, ए बी सी और डी फॉर द टेस्ला। आई हैव सेट इट टू 6। ओके 6 4, दैट इज ऑप्शन डी। ओके, अब बाकी आप सब भी बताओ, लाइक आप सबको तो पता होगा, या एक और ऑप्शन सेट कर देता हूँ, एरर ए, ओके बी, ऑल राइट, okay, that is it. Okay, see, 4 6, all right. तो जो 4 6 लिख रहे हैं, कैन यू गाइस टेल मी द रीजन? Because in the global space it's 4 only, right? Yes, 4. But yes, Tesla properties it's defined 6, so it will come 4 6. right, right. So can you like now you guys will able to differentiate. See, जब मैंने यहाँ पे कर दिया ना टोटल नंबर ऑफ व्हील्स, टेस्ला डॉट टोटल नंबर ऑफ व्हील्स, देन ये टेस्ला का एक इंस्टेंस वेरिएबल बन गया है, ठीक है। दिस इज ओवरराइडेड, सेल्फ डॉट नंबर ऑफ व्हील्स फॉर टेस्ला इट इज ओवरराइडेड, बट जो क्लास वेरिएबल है वो सबके लिए सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। it doesn't mean it can't be changed, it can be changed, but it is not changing in using this way, okay। ऐसे चेंज नहीं होगा। इज दिस लाइक क्लियर? like that is why I have written both of these to go to this conclusion कि कैसे, how can we able to differentiate both of these, okay। all right, so अभी मैं इसको हटा सकता हूँ, या इनफैक्ट इसी को हटा देता हूँ, नीचे वाले को मुझे ज़रूरत नहीं, डजेंट मैटर, मैं दोनों में से कोई भी यूज़ करूँ। इट इज़ बेट सजेस्टेड कि हमेशा सेल्फ यूज़ करो, डोंट यूज़ द क्लास नेम, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ क्लास वेरिएबल। अगर कभी क्लास वेरिएबल की ही हमें यूज़ करना है, हमें पता है हम उसको चेंज नहीं करेंगे वेरिएबल को, देन यू कैन यूज़ क्लास वेरिएबल। अभी एक और छोटी सी चीज़ है, ये सेल्फ की जगह ना हम कुछ भी लिख सकते हैं हर एक मेथड पे। यहाँ पे मैंने सेल्फ लिखा है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मी, कुछ भी चलेगा, डजेंट मैटर। यहाँ पे मैं यू लिख देता हूँ, एनीथिंग, ओके। जस्ट रिमेंबर कि आप ऐसे ये कार नहीं लिख रहे, ठीक है। आई कैन राइट कार इन स्मॉल केस, सबके लिए इट विल वर्क, ऑल राइट। तो मैंने यहाँ पे इस पे मी डाल दिया, इस पे यू डाल दिया, यहाँ पे सेल्फ है। लेट्स ट्राई विद ऑडी, ऑडी डॉट स्टार्ट, ऑडी डॉट स्टॉप, दोनों पे इट विल वर्क, ओके। सो सेल्फ इज अ वेरिएबल जो ये इंस्टेंस को ले रहा है, ठीक है। सो सेल्फ को कंक्रीट मत समझना कि हमें हर बारी सेल्फ ही लिखना है, सेल्फ इज जस्ट अ कन्वेंशन, ओके। हाउ कैन वी रिप्लेस अ वेरिएबल इन आवर कोड, मतलब ओके, इज दिस अंडरस्टूड कि हम ये सेल्फ की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है एंड दे थिंक कि हमें सेल्फ ही लिखना है, हम और कुछ नहीं लिख सकते। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी ना? ये आप लोग खुद भी ट्राई करना, ओके, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी सर जैसे यहाँ पर सेल्फ था वेरिएबल, सो अभी आपने यू से रिप्लेस कर दिया, सो आई वांट कि मतलब सब जगह अपने आप हो जाए, लाइक अगर नहीं, एक जगह दैट इज नॉट लाइक इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। ये हर एक मेथड पे मैंने एक सेपरेट यूज़ करा है, ओके। सो मैनुअली हर जगह चेंज करना पड़ेगा, राइट? हाँ, मैनुअली करना पड़ेगा शॉर्टकट आपको। नहीं है कि एक जगह चेंज किया सब जगह रिप्लेस हो जाए। नो, वो तो आप फाइंड एंड रिप्लेस से कर सकते हो ना।
टूल से इन द कोड एडिटर. Okay. Okay, so ये तो guys see these is the like this is a very basics of object oriented programming. ठीक है, अभी आप सबको क्लियर है ना? ब्लूप्रिंट, मेथड्स, एट्रीब्यूट्स, क्लास वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल, मेथड्स एंड इंस्टेंसेस, ऑब्जेक्ट्स, सारे नेम्स, कोई भी नेम ले लो, सबको क्लियर होना चाहिए आई होप. अभी ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. इट बेसिकली लाइक यू कैन से पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सो एक तो यही है प्रॉपर्टी, सारे कोड को ना एक साथ इकट्ठा रखता है. ओके, विच बेसिकली इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन. ये सारी चीज़ों को एक लाइक कंसिडर एज अ कैप्सूल. ओके, जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल के अंदर जो भी पाउडर होता है, सो उस सारे को कवर करके लाइक एक पोर्शन एक स्पेसिफाइड एरिया में रखता है. तो उसको हम बाहर कहीं से ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते. लाइक मैं नॉर्मली नंबर ऑफ व्हील्स नहीं कर सकता. ओके, मैं ऐसे नहीं कर सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो इट एनकैप्सुलेट एवरीथिंग. ऑल्सो एब्स्ट्रैक्शन भी होती है. एब्स्ट्रैक्शन मैं अभी यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे यू विल सी एब्स्ट्रैक्शन कि यहाँ पे मैं गेट रिस्पॉन्स करके एक मेथड कॉल कर रहा हूँ ना, बट ये जनरेट रिस्पॉन्स जो ये जनरेट रिस्पॉन्स कॉल करेगा ना, जो भी यूज़र है, अगर वो ये मेथड कॉल करेगा तो उसको नहीं पता अंदर क्या क्या हो रहा है. तो इट मीन्स इट इज़ लाइक डूइंग द एब्स्ट्रैक्शन. अंदर जो वर्किंग हो रही है किसी को कुछ नहीं पता, बाहर से दे जस्ट नो कि दे हैव टू कॉल दिस मेथड and they will get something in return or in output. Okay, so this is called abstraction. And the third one is inheritance मैं आपको भी बताऊंगा. And the fourth one is polymorphism is like same thing, ये आपने अभी यहाँ पे देखी ही. like okay, these are the instances. polymorphism मैंने आपको इस वे में दिखा दी. well, like for this car I am doing car dot. polymorphism का मतलब क्या होता है कि वर्किंग सेम है सबके लिए, जस्ट दैट कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट है. लाइक मैं अगर कार डॉट प्रॉपर्टीज ऑडी करूँगा तो सबके लिए वर्किंग सेम है, बट जो है थोड़ी सी प्रॉपर्टीज चेंज है. यस, मोर देन वन, वही मोर देन वन इंस्टेंसेस के लिए. एंड BMW हम एक से ज़्यादा इंस्टेंस बना सकते हैं एंड सबकी लाइक वर्किंग सेम होती है कि हाउ दे वर्क, हाउ कैन वी ट्रीट देम. ऑलराइट, सो कार डॉट प्रॉपर्टीज ऑडी, कार डॉट प्रॉपर्टीज BMW, मैं कुछ भी करूँ मेरे पास सही आउटपुट आएगा. ऑलराइट, सबको क्लियर हो गया ये सारा कुछ? ओके, अभी सी द थिंग इज व्हेन यू गाइस लाइक राइट बिग कोड बेस, जब आप कोड एक सिंगल पाइथन स्क्रिप्ट से आप एक कोड बेस पे जाओगे, when you will have multiple files, like not tens of files, hundreds of python files. okay, तब आप पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम करोगे. आप कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट देख लो, कुछ भी देख लो, वहाँ एवरीबडी यूजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इफ द लैंग्वेज सपोर्ट्स. ओके, कुछ लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करती ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो उसमें नहीं वर्क करता ऑफ कोर्स, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करती, बट पाइथन सपोर्ट्स इट, सो दैट्स व्हाई इट वर्क्स. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये करो. डजेंट मैटर आप मेरे से करो, कहीं और से देखो, इट्स अप टू यू, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. एंड आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा. अभी थोड़ा सा इनहेरिटेंस का देखते हैं. ओके, मैं इन सबको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ. इनहेरिटेंस के लिए थोड़ा सा ना व्हाट्सअप मैसेज पे जाते हैं. ठीक है, सी मैसेज में जब भी एक मैसेज होता है, ठीक है, हम एक व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं ना, तो मान लो हर एक मैसेज एक इंस्टेंस है मैसेज नाम की क्लास का. ठीक है, मैसेज नाम की एक क्लास है, और जब भी हम एक मैसेज भेजते हैं, चाहे आप मुझे भेज रहे हो, चाहे मैं आपको भेज रहा हूँ, डजेंट मैटर, ग्रुप में भेज रहे हो, कहीं भी भेज रहे हो, कंसिडर इट एज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास नेम्ड मैसेज. क्यों, वाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि हर एक मैसेज में कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है ना. लाइक वी कैन सेंड द मैसेज, राइट, वी कैन एडिट द मैसेज, वी कैन डिलीट द मैसेज, वी कैन फॉरवर्ड द मैसेज, है ना? एम आई राइट? ये प्रॉपर्टीज तो होती है हर एक मैसेज पे. इज दिस क्लियर टू यू ऑल?
व्हाट्सएप पे व्हेनेवर यू मैसेज टू समबडी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो वी कैन कंसिडर कि हर एक मैसेज, जैसे ये आपने यहाँ पे मैसेज भेजा, क्लास वेरिएबल कांट बी चेंज आई गेस, तो यहाँ पे इसके पास तो लाइक वी डोंट हैव एनीथिंग हियर टू लाइक एडिट और क्रिएट और समथिंग। मैं अभी व्हाट्सएप खोल नहीं रहा बिकॉज इट इज़ बीइंग रिकॉर्डेड एंड आई डोंट वांट कुछ किसी के नंबर लीक हो। सो जस्ट दैट कि व्हाट्सएप पे हमारे हर एक मैसेज की एक प्रॉपर्टी होती है। इफ़ आई लाइक ओके फेक व्हाट्सएप मैसेज स्क्रीनशॉट में भी कुछ ऐसा अगर टूल हो, चैट जनरेटर, या सो इज दिस लाइक, कैन यू गाइस सी दिस? अभी आई डोंट नो लाइक ओके, इफ एनीबडी कैन स्पीक देन मुझे बताना, लाइक कैन यू गाइस सी दिस? हर एक मैसेज है जैसे यहाँ पे, तो हर एक Yes. मैसेज को ना लेट्स ट्रीट ईच मैसेज एज एन इंस्टेंस ऑफ अ मैसेज क्लास, ठीक है। हर एक मैसेज हम सेंड कर सकते हैं, हर एक मैसेज को हम डिलीट कर सकते हैं लाइक दिस। अभी तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है बट हमें पता है हाउ डू वी डिलीट इट बाय सिलेक्टिंग दैट पर्टिकुलर मैसेज। और हर एक मैसेज को हम टैग भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, बहुत सारे वेज होते हैं, राइट। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हर एक में सेम होती है। अभी ना ओके मैसेज क्लास, ओके मैं इस पे ना ओके आई शुड नॉट कंसिडर दिस क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे। लेट्स टेक अ नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल सा लेते हैं, ह्यूमन, वो तो सब कोई रिलेट कर पा रहा होगा। कैन वी क्रिएट अ ह्यूमन क्लास की, लाइक सारे ह्यूमंस की कुछ कुछ वर्किंग सेम है, राइट। लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स की एवरी ह्यूमन ब्रीद, है ना, and every human, like we can walk, we can speak, we can hear, we can listen, we can see. So these are like some of the same things which we can do, right? Now human की we can create a class. अब human के base पे we have student. Student is also a human, am I right? Student एक human होता है, like student walk भी कर सकता है, बस that student में थोड़ी सी additional चीज़ें होती हैं, जैसे student do study, okay, एक चीज़ ये अभी ऐड करते हैं फिलहाल के लिए। देन वी हैव अ लाइक प्रोफेशनल, वर्किंग प्रोफेशनल। वर्किंग प्रोफेशनल इज ऑल्सो ह्यूमन, जस्ट दैट दे डू अ जॉब, ओके। इज इट क्लियर इतना, लाइक व्हाट इज अ स्टूडेंट, प्रोफेशनल एंड ऑल द थिंग्स। सो ये ह्यूमन का हो गया। अभी कैन यू अंडरस्टैंड कि एक इनहेरिटेंस काइंड ऑफ हो रही है कि प्रोफेशनल भी एक ह्यूमन हो सकता है, स्टूडेंट भी एक ह्यूमन हो सकता है। So it is kind of student is inheriting all everything from human, like student वो सब कर पाएगा जो एक human भी कर सकता है, that is of course normal. अभी if I take some another example, मैं एक और example ले लेता हूँ। Let's take the example of animal और living being, बहुत सबसे एंड पे जाते हैं। let's okay let's start with the code class living being. We all are living beings. Living beings can be animal, living beings can be birds, humans, okay. uh, some plants are also living, like plants are also living, so yes, बहुत सारे reptiles, insects and all, we all are living beings. uh, हर एक लिविंग बीइंग का लेट्स से एक ना मैं एक इनिट बनाता हूँ एंड टाइप, ओके। मैं टाइप रख देता हूँ फिलहाल के लिए, self dot type. What is like type here? Okay, I would use underscore type. मैं underscore type क्यों यूज कर रहा हूँ, ये कोई मुझे बता सकता है why I'm using underscore type here? Keyword, yes, type is a built-in function, so I don't want to override it, that's why I'm using underscore type, और type underscore कुछ भी यूज कर सकता हूँ। हर एक लिविंग बीइंग ब्रीथ करता है, राइट। if you guys agree with me, just like give a thumbs up or write in chat box, so मुझे like पता चलता रहेगा कि सबको। so I am breathing करके अभी के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। now let's create a animal, ठीक है। सेल्फ एंड एनिमल पे ना
एक लेट्स पास एन नेम, अभी के लिए सिर्फ नॉर्मल रखते हैं, ज़्यादा नहीं जाते, वेदर इट्स कार्निवोरस और समथिंग। हर एक एनिमल का लेट्स से नेम की, वेदर इट्स अ काउ, कैट, डॉग, टाइगर, समथिंग, कुछ भी, ठीक है। तो मैं उसको नेम दे देता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, नाउ ब्रीथ, एनिमल भी ब्रीथ करता है, राइट? एम आई राइट? एनिमल ऑल्सो ब्रीथ, एनिमल, और आई वुड राइट एफ string self dot name is breathing, और मैं यहाँ पे ना ब्रैकेट में एनिमल भी लिख देता हूँ, तो जिससे आपको थोड़ा क्लियर होगा। एनिमल इज ब्रीदिंग, मैंने दो, एक और मैं एनिमल पे एक मेथड बना लेता हूँ, वॉक, एनिमल्स डू वॉक, राइट? ऐसा तो नहीं है कि एनिमल वॉक नहीं करते, तो एनिमल इज वॉकिंग, मैंने बहुत लाइक इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्शन, सो इसको आप एब्स्ट्रैक्शन भी समझ सकते हो काइंड ऑफ। This is like one class I've created, this is one, this is second. Now let me create one more class human. Okay, ठीक है, human पे नहीं जाते अभी, अब इतना रखते हैं। Okay, welcome. So yes, see, लिविंग बीइंग पे जाते हैं फिलहाल। ओके, काफ़ी टाइम हो गया, 10:54, सॉरी मैंने देखा ही नहीं टाइम। जल्दी से विद इन 15 मिनट्स लेट्स एंड द सेशन, क्योंकि अब थोड़ा सा रह गया। लिविंग बीइंग पे मैं एक बना सकता हूँ लाइक एल बी करके, लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग का टाइप फिलहाल के लिए कुछ भी लाइक ह्यूमन लिख देता हूँ बस मैं। ओके, एंड मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ एफ सेल्फ डॉट टाइप इज ब्रीदिंग। कैन आई कॉल एल बी डॉट ब्रीद, इज इट वैलिड? ओके, पहले मुझे बताओ एल बी क्या है, इज इट is it a blueprint template or is it an instance object? Yes, it is an object or instance. Then if I do lb dot breathe, मेरे पास क्या आएगा? this, right? Human is breathing, है ना? if I run this human is breathing, तो मेरे पास इतना आ गया। yes, 112 लाइन। अभी सी लिविंग बीइंग भी ब्रीथ करते हैं, एंड अब मैं एक एनिमल बना लेता हूँ, लेट्स मैं टाइगर बनाता हूँ। एनिमल टाइगर, मैं यहाँ पे पास करता हूँ नेम टाइगर। इफ आई डू टाइगर डॉट ब्रीथ एंड टाइगर डॉट वॉक, ठीक है, इफ आई रन दिस वी विल से टाइगर इज ब्रीदिंग, टाइगर इज वॉकिंग, ठीक है, ये तो क्लियर है। अभी सी टाइगर के पास कुछ कुछ सेम चीज़ें हैं जो एक लिविंग बीइंग में होती हैं, लाइक ब्रीथ इज वन फंक्शनैलिटी, राइट? एनिमल कैन ब्रीथ, तो हम क्या करेंगे, लाइक व्हाट आई विल डू, I'll like simply inherit living being class। मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास बनाते टाइम यहाँ पे एक पैरेंथेसिस डालूंगा, एंड पैरेंथेसिस के अंदर I'll write living being। इसका मतलब क्या होगा कि आई कैन यूज दिस ब्रीथ मेथड दिस एज वेल। अगर मैं इसको हटा दूँ ना, इस ब्रीथ को यहाँ से, ओके, फिलहाल के लिए यस, एनिमल इज अ सब क्लास, आई विल गो इन टू द नेमिंग्स एंड ऑल। अभी के लिए मैं बस इतना करता हूँ, और इसके साथ मैं क्या करता हूँ, एक सुपर करके एक है, ओके, सुपर डॉट ओके, यस, सुपर, एंड देन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, एंड मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ एनिमल। ओके, इफ नाउ इफ आई रन दिस, अब आप लोग मुझे बताओ कोड वर्क करेगा या एरर आएगा? will this code works or will this give us a error? डोंट गो इनटू द कोड कि ये क्या है, अभी नॉर्मली बताओ, क्योंकि ब्रीथ फंक्शन मैंने यहाँ पे नहीं डिफाइन किया ना। फॉर लाइन नंबर 125 विल वी गेट एनी एरर और विल इट वर्क? ओके, इट वर्क, यस इट विल वर्क। सो इफ आई रन दिस, कैन यू सी एनिमल इज ब्रीदिंग। मैंने यहाँ पे कोई ब्रीथ मेथड तो बनाया ही नहीं 125 फंक्शन पे, जो मैं मेथड कॉल कर रहा हूँ एनिमल पे तो कोई ब्रीथ है ही नहीं। ब्रीथ है बट लिविंग बीइंग पे है, एंड इन द लिविंग बीइंग द टाइप इज ब्रीदिंग, ठीक है। तो वही मैंने किया, मैंने ना लिविंग बीइंग को इनहेरिट किया, यस,
इनहेरिट किया एंड उसके ना मैंने ये सुपर क्या करता है, सुपर बेसिकली जो भी इसकी ऊपर वाली क्लास होती है ना जिसको हमने इनहेरिट कर रहे हैं, ये लिविंग बीइंग को कंसिडर कर रहा है एंड अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट करके मतलब इस मेथड को कॉल कर रहा है एंड वी आर पासिंग इन एनिमल। ओके, सो इससे क्या हो रहा है, इट इज अ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, इट इज टेकिंग दैट लिविंग बीइंग क्लास एंड वो लिविंग बीइंग के जो भी चीज़ें हैं लाइक टाइप, ब्रीथ, फंक्शन, ब्रीथ मेथड, उसको भी ये वी कैन यूज इट नाउ after writing these two lines, line number 115 and line number 117, we can use these things as well. Okay, so if I run this, you can see animal is breathing and tiger animal is walking, that is as it is. Here animal is a child class and living being is a parent class. Okay, is this clear to all of you? All right, सो ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है, हम इसके आगे और भी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पे भी जा सकते हैं। ठीक है, लेट्स लाइक बस थोड़ा सा ह्यूमन एक क्रिएट करते हैं, ह्यूमन इज ऑल्सो लिविंग बीइंग। ओके, नाउ ठीक है, एनिमल के साथ में ही थोड़ा सा नॉर्मल रखते हैं, इन इट सेल्फ एंड नेम सुपर अंडरस्कोर इन इट एंड यहाँ पे मैं ह्यूमन लिख देता हूँ। ठीक है, एंड सेल्फ डॉट नेम नेम ह्यूमन जो भी है एंड ह्यूमन वॉक भी करता है, मैं इसको ना कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ह्यूमन एंड एक और मैं बनाता हूँ डेफ टॉक, सेल्फ डॉट नेम इज टॉकिंग, वी ह्यूमंस कैन टॉक राइट, तो आई एम टेकिंग अ जनरल एग्जांपल, तो ह्यूमंस कैन टॉक, ये एक नॉर्मल एक और हो गया। अभी एक ठीक है, दिस इज सिंगल लेवल, अभी okay, this is a okay, not multiple, this is a single level inheritance, abhi itna fine hai। Now if I create a human, let's say name Param, I'll write human and I'll pass in the name Param। Okay, if I call Param dot breathe, what will be the output? Param is breathing। Okay, if I run this, okay, sorry, human is breathing। Oh, all right, why human is breathing, why not Param is breathing? See, यहाँ पे ना मैं init पे human पास कर रहा हूँ, तो ये टाइप पे ह्यूमन आ जा रहा है। ओके, दैट्स वाई ह्यूमन इज ब्रीदिंग नॉट परम इज ब्रीदिंग, बट लेट्स डू समथिंग, लेट मी कॉपी दिस मेथड फ्रॉम लिविंग बीइंग एंड लेट मी राइट create the method here self dot name, मैं एनिमल को हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। सी, ब्रीद मेरा यहाँ पर भी है, ब्रीद मेरा यहाँ पर भी, एरर आएगा राइट, क्योंकि मैं सेम मेथड दोबारा बना रहा हूँ। एम आई राइट? will I get error or something else? See, error नहीं आएगा, it is known as method overriding। okay, well, okay, sorry, not yeah, method overriding। so method overriding means जो यहाँ पे ये ब्रीद है ना, ये बेस क्लास है, दिस इज द पेरेंट क्लास, यहाँ पे सेल्फ डॉट टाइप इज ब्रीदिंग एंड यहाँ पे ना मैं एक और लिखता हूँ ह्यूमन, तो मैं ये मेथड को ओवरराइड कर दिया मैंने ब्रीथ मेथड को एंड यहाँ पे मेरा जो प्रिंट होगा वो होगा परम ह्यूमन इज ब्रीथिंग। पहले मेरा प्रिंट हो रहा था ह्यूमन इज ब्रीथिंग, पहले प्रिंट हो रहा था फ्रॉम दिस, नाउ इट इज बीइंग प्रिंटेड फ्रॉम दिस। ओके, आई कैन प्रूव इट एज वेल लाइक फ्रॉम लिविंग बीइंग एंड प्रिंट फ्रॉम ह्यूमन। ओके, इफ आई रन दिस नाउ, यहाँ पे आ रहा है फ्रॉम ह्यूमन। if I like comment this method, now if I run this, you will see from living being। okay, this is method overriding। is this clear to you all? okay, अभी एक लास्ट चीज रह गई, दिस इज सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। एक लास्ट चीज करते हैं, क्लास स्टूडेंट which is human। okay, and in this human what I will do is
I will take name and I will take, let's say student है तो college name as well. Okay, मैं क्या करूँगा, super init एंड यहाँ पे मैं पास कर दूंगा नेम को एंड सेल्फ डॉट कॉलेज नेम इक्वल्स लेट्स से आईआईटी मद्रास. ओके, फिलहाल के लिए हम ऐसे सेट. ओके, नॉट यहाँ पे, मैं यहाँ पे नहीं, मैं इसको ऐसे कॉपी करता हूँ और मैं ना एक ये करता हूँ स्टडी, क्योंकि एक स्टूडेंट स्टडी करता है नॉर्मली, हम बस एक बहुत बेसिक सा लेते हैं. ठीक है, एक स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं. व्हाट आई विल डू इज ओके, मैंने यहाँ पे एक ना मैंने नेम तो पास कर दिया, बट मैंने यहाँ पे कोई सेल्फ डॉट नेम करके बनाया नहीं है वेरिएबल लाइक सेल्फ डॉट कॉलेज. बट स्टिल आई वुड बी एबल टू एक्सेस सेल्फ डॉट नेम. हाउ कैन एनीबडी टेल मी, लाइक हाउ एम आई एबल टू एक्सेस दिस, लाइक इज स्टडिंग. मैं अभी इसको क्लियर कर रहा हूँ. स्टडिंग इन सेल्फ डॉट कॉलेज नेम बाय सुपर, राइट. एंड मैं एक और थोड़ा सा और भी आपको बताऊंगा अभी. तो वापस से ले लेते हैं, परम इज अ स्टूडेंट. ये लास्ट है एग्जांपल, इसके बाद लाइक इक्विवेलेंट एंड स्टूडेंट में आई विल पास परम एंड आई विल पास IIT Madras. To replace human with param, do we need to override function over here? We have human with, sorry, okay, this human. तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इस नेम को पास कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पास कर सकता हूँ नेम को, जैसे मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ ना नेम, तो वैसे इन प्रीवियस एग्जाम्पल sorry, where like okay, अभी फिलहाल ये देखते हैं. परम डॉट ओके, इफ आई डू परम डॉट स्टडी, तो मेरा जो है आउटपुट वो आ रहा है परम इज स्टडिंग इन IIT मद्रास. कैन यू गाइस सी, लाइक मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम मैंने यहाँ पे डिफाइन ही नहीं करा, स्टिल आई एम एबल टू यूज इट. हाउ, क्योंकि जो स्टूडेंट की जो पेरेंट क्लास है विच इज ह्यूमन, इट इज़ हैविंग अ वेरिएबल नेम नेम. ओके, एंड वो नेम मैं यहाँ से पास कर दे रहा हूँ. ठीक है, तो ये इसकी जो पेरेंट क्लास है वो सुपर की हेल्प से यूज़ हो रही है. एंड सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे इसमें मैं ह्यूमन को पास कर रहा हूँ लिविंग बीइंग में टाइप में, तो मैं यहाँ पे टाइप भी एक्सेस कर सकता हूँ. लाइक इफ आई डू प्रिंट परम डॉट अंडर सॉरी परम डॉट टाइप, इफ आई रन दिस यू विल सी ह्यूमन आ रहा है. कैन यू सी, लाइक मैं इस चीज़ को एक्सेस कर पा रहा हूँ यहाँ से. लाइक मैं काइंड ऑफ you can say grandparent class से I am able to access the very child class. Okay, the grandchild class we can say. So this is like multi-level inheritance. Like ये तो एक हो गई multiple inheritance, single level inheritance, not multiple. Single level inheritance, इसमें एक ही level है, that is living being के बाद human है. But ये है multi-level inheritance, यहाँ पे student human से inherit हो रहा है, human living being से inherit हो रहा है. Okay, is this clear to you all? ओके, बाकी सबको क्लियर है और ओके, आई होप सबको क्लियर होगा. या सो दिस इज इट. वेल, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी है, सॉरी मल्टीपल इनहेरिटेंस भी, उस पर अभी नहीं जाते. PYQs वाले टाइम, PYQs में अगर कोई आएगा तो उसमें वी विल कवर दिस. ओके, अभी लाइक सबको क्लियर हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, कैसे वर्क कर रही है, एवरीथिंग आप सबको तो आई होप क्लियर हो गया होगा. And yes, so that's it about the session. So let's end this. काफ़ी देर हो गई आज, बहुत ज़्यादा. So yes, bye guys, good night. And one more thing, next session जो है हमारा होगा on Saturday 31st 12 PM. Okay, so इस चीज़ का ध्यान रखना कि 12 PM को सेशन है. Then we will do PYQs, only PYQs. एंड आप लोग मुझे PYQs भेज भी सकते हो इफ़ यू वांट टू कवर मी सम स्पेसिफिक PYQ. ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सौम्या, सुरेश, ध्रुव, वेदिका, थैंक यू गाइस.
for staying till now.